Fine, friends. So, you know my name. It's still for you. Myself, Dr. Manoj Sharma. Okay. And here I will be telling you something about the subject of public administration. But children, before that, you go for it. I would like to share some experience of mine that how do we reach the selection of an optional, because that will also be something useful for you as young kids. Should you take this? It's like A, B, C, D, E, F. So many options are there. How do you go and select any optional, right? See, friends, the weightage of optional at UPSC is 500 marks. Okay. So out of 1750, 500 marks are such where you know what can come. I think you are getting my point. In the remaining 1250 marks, there can be a lot of surprises. But the best part is that wherever surprises are there, if I am surprised, you two are equally surprised. So there, the merit will not vary considerably. Somebody who is well prepared, the difference can be of 50, 60 marks maximum. That will be there, not more than that. But optional is such a thing where someone who is very well prepared can get even 320, 328 also. And somebody who is less prepared or who has prepared but has not been in right direction can score as low as 150, 160 also. So here the difference comes. Okay. Selection to UPSC nowadays we say is by mainly 4 papers. One is 2 papers of optional, 1 of essay and 1 of ethics, where still you have some idea that I can prepare in advance. The remaining beta 3 papers, GS1, GS2, GS3. Vastness is such and application is such a thing that even practitioners may get confused. My friends who are online, can you hear me clearly, friends? Just type beta. Yes, great. So, selection of an optional. It means it is an important thing. Not because I am teaching public administration or PSIR or sociology. No, it's not. It is an important thing. Suppose, let me take an example. You would have been a doctor. Who would have told me, sir, I did my MBBS, then I did my MD also. Which optional I should go for? And suppose I'm an anthropology teacher. Then if I would have tried to convert you to anthropology, that would have been wrong on my part. Because in anthropology, you will be required to learn every concept anew. While MD means you are a practitioner. So a lot of concepts now you are already aware of. At least in the examination, you will not be surprised. And your range will be from 210 to 270. Very well prepared, 312. Less prepared, 210. It cannot be 150. But in anthro, it can be 150 also. Because if you have really not covered it to that level, then it can be a problem. So I'm not saying anthro is bad, anthro is very good. If you would have been a student of bio, I would have said take anthro, it can be helpful, or take socio, take PABAD, whatever you want. So selection of optional should not be guided by emotions. First topper was from that optional, let me be there. First thing is try to be in the list and try to have an idea that what optional can really help you to gain, let's say, minimum marks of 250. Okay. I think when you were with me in class, okay, at that time, someone of you asked me, why PABAD? And I told you, it is with it, I can take you to the list. See, whether you will be in the first 100 or not will depend on various factors. But yes,
I can help you to be in the list. Because here you will not score 150, 160, 170, 210. You surely will be in the range of 240 to 270, 280. If very well prepared, even 312 marks are possible, 318 are possible, 328 are possible. But we never consider the most optimistic thing. I always believe if you have the idea of most pessimistic, then you know where I actually stand. Success rate is very important, right? There can be some optionals you can score as high as 300, but as low as 150, 140. It's a disaster. Because for one, it may be a great success, but for 99, it may be a disaster. So that should be the consideration. Anyway, let's try to reach some systematic way of selection of optionals. How do you select optionals? See, friend, we try to see if some overlapping is possible. The syllabus which is having overlapping. So that is one aspect that we talk about is overlapping. That what is the degree of overlapping? That your subject knowledge can help in other things. Overlapping beta with what? That should be answered. Because when I am saying this is first aspect that anyone should see. So overlapping is of syllabus, concepts, applications means examples that you learn in a subject. Applications, that is examples. So syllabus, concepts, that is what learning you can have. Can it be used for your GS papers? First, second, third, fourth, and then SC. Right? Okay. Simple system. I have learned something here, whether it will be of any use here or not. That should be actually comprehended. This is first aspect that you should, before you go for any subject, you should have an idea that what should be my criteria. It shall never be that somebody from that subject topped. As Radha is asking her, has anybody got 500? 500 marks, total paper, there is no chance even to score anything above 325 or more than that, 330 in humanities or in any paper. Okay, Radha? So 500 is too optimistic, rather impractical. 500 out of 500, not possible. See, child, there is something termed as scaling. So let it be mathematics, let it be physics. If you are a student who is saying, sir, I know subject to its complete aspects and I can score 450, 416 if I take physics, I will definitely recommend please take physics. Because even after scaling, let's say of 60, 70 marks, still you will be 350 plus or 350. So you will be 100% in the list, even if you have spoiled 2 of the papers. Nobody can stop you. But if you score in maths somewhere around 320, 310, it will come down to a low score and you will be out of the list. Math, physics can be taken. Why not? Any subject can be taken. Hamita? Commerce and accountancy, child, if you have been a chartered accountant, okay? If you have been a chartered accountant and you really know the application aspect also, how to write it well. Any subject can be taken. I will take your questions one by one. All of you. First of all, I'm trying to give you an idea that how do we take.
So this is criteria number 1. So let us have a litmus test of public administration on it. Public administration, what it involves. Public administration, let me tell you a story and you will understand what administration will be. A story of conversation between Chandragupta Maurya and Kautilya. Once Dhananand was displaced and Chandragupta Maurya was established. Now, in one conversation we are seeing in Arthashastra that Chandragupta is telling his teacher, that is Kautilya, that, oh teacher, now don't you think the state shall be as we expected it to be? And Kautilya said that, see, just by changing the king, the source of authority may become pure. But till the time the channels through which it will go down, they are not clear. If they are clogged, nothing will reach. And if they are full of impurities, then whatever authority will go, that will reach the ground with impurities. What he was talking about? Kautilya was talking about administration. So administration is a study of those channels through which authority from the source of the state is actually going to the level of implementation. Are you getting what it is? So public administration is studying all those channels. ये उन नालियों की स्टडी है, उन पाइपलाइंस की स्टडी है जिनसे सोर्स नीचे तक जाती है। अगर पाइप ही भाई गंदा है बीच में, तो उसमें से आप कितना भी साफ पानी डाल दीजिए, नीचे फुल ऑफ इंप्योरिटीज ही पहुंचेगा। ठीक है, बस यही तो खास बात है। दिस इज वेयर, सो व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन? एडमिनिस्ट्रेशन विल स्टडी ऑल दोस पाइप्स। ये क्या, कितने पाइप हैं, 5 हैं, 6 हैं, 500 है, व्हाटएवर। व्हाट इज द सिस्टम? क्या कुछ पहले बड़े पाइप हैं, फिर छोटे छोटे पाइप्स हैं, या क्या सिस्टम है? कहां पे वॉल्व्स लगे हुए हैं? भाई बंद करनी है अथॉरिटी तो क्या बंद कर सकता हूं? कैन आई रियली स्टॉप द फ्लो इफ रिक्वायर्ड और नॉट? तो जरा एप्लीकेशन देखते हैं। तो नॉलेज तो नजर आ रही है, ये तो गवर्नेंस ही पढ़ रहे हैं हम तो। भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉलिटी इन एप्लीकेशन. It is for those, some people are saying we want to take PSIR. I am not against. But application part here, those who are mistaken that will be covered by PSIR should be warned. Nothing will come from PSIR here. Everything will come from its application. So what you study in PSIR is theory. Because application part is studied in public administration of that. So if I see coverage in it, let me see first paper's coverage. So beta 50 marks, clear cut, where it comes social issues. I'm going very objective. I'm not trying to say out of 250 immediately 200. No, 50 here are straight away from here. Straight, 100%. This, in this paper, 210 marks. Paper 2. In paper 3, internal security, disaster management, all that will be there. Around 90. And in this paper, again around 200. This is the degree of overlapping. And essay, one essay surely will be from administrative aspects. So when you cover it, so these many marks surely will be covered by you. What's the total? 260, 350, 550, 675 plus 500. If you prepare this subject well, really well, your 1175 marks you are preparing for. That is why we say with this subject, it becomes easier for you to be in the list. I'm not saying you will become a topper immediately. Not at all. Not at all. I have been teaching. Let me share with you. I think you must have seen that background also of mine. I have not done
my PhD in public administration. But still I teach PubAd for last more than 25 years. Why? I am a person from management. And I understand only one thing in life, that is profit. I don't understand anything. I understand whatever goal you are on, whatever mission you are for, that should be completed. Okay? Free from emotions. If you ask me, sir, do you really love this subject? I may say no, my love is somewhere else. But this is my practical partner to cover the route, like James Bond. It's not that I'm in affair with public administration, not at all. Okay, but I know one thing, that she is a master and can help me in completing this mission. That's like that. Okay, so, and why it is, earlier also when two subjects were there, at that time I was also teaching it, and after it, the change of pattern, lot of things will come up. And one thing you all children can see is on net also, try to find how many candidates are recommended from each subject every year. If you have seen it, I think on 𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫, it must be there. A lot of coaching centers are nowadays available. The maximum number of candidates which will be recommended will always be with public administration. Check it, check online. Teacher may be telling wrong. Oh yes, check it online, success rate of various subjects, and you will find out. And then you will understand why I teach it. Okay, I could have taught any subject, not engineering, I myself told you. Okay, engineering, apart from that, I could have taught law, I could have taught easily PSIR, easily, or PubAd. But why I have gone for PubAd only? The reason is, I only believe one thing, that friends, welcome, come. No issues, don't rush. I only understand one thing, that you are here, will not give you any degree. At least in colleges, when you go, you get a degree. Here, when you are here, only one thing is you are expecting selection, nothing else. The first thing should be that selection should happen. Later on, you can say that I want AS only, and I'm not looking for RS or something else. IRS, I'm looking for that, or IAS or IAS. But first thing is, you become secured as you find your name in the list. भाई सर्विसेज तो सारी अच्छी है. मेरा बिलीफ ये है यार कि सबसे पहले लिस्ट में आ जाओ, बाकी बाद में देखेंगे. ठीक है, तो इसलिए अब ये आपने देख ही लिया ओवरलैप. पहला पॉइंट ओवरलैपिंग का समझ में आया कि कितना ओवरलैप करता है. और ये आप सिलेबस निकाल के देखिए. दोज हु आर ऑनलाइन काइंडली गो अहेड. बहुत झूठ बोलते हैं टीचर्स, क्यों सच मानो. देखेंगे भाई, ढूंढेंगे. दिस इज व्हाट, इफ आई कम फ्रॉम अ गुड इंस्टीट्यूट आई शुड ऑलवेज टीच यू दिस ओनली. कम से कम वैल्यू सिस्टम तो अच्छा देना चाहिए और एक लर्निंग देनी चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लेते हैं ओवरलैपिंग. और अगर कोई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो भाई ये अकेला 675 कर गया, यहाँ पे 675 है, तो अगर बाकी 200-300 के नीचे हैं तो फिर तो उनको लेना बेवकूफी है. कोई आमिर खान की दिल तो चल नहीं रही है, हम तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप में हैं, फिर बेवकूफी है. इसलिए कि एक बच्चा टॉप करेगा, वो तो कोई भी कर सकता है किसी भी सब्जेक्ट में टॉप. बट कोई मेडिकल साइंस में कर जाए, इसका मतलब थोड़ी आप मेडिकल साइंस लेने की सोचोगे. मरना है उसमें, एनाटॉमी समझ में नहीं आएगी 3 साल तक. तो वो तो उसी के लिए है ना जो उस फील्ड से है. दूसरी चीज हमेशा एक होता है कंपटीशन. ये बेटा आप बाद में आए हो, आप में समझ में आया व्हाट वी आर टॉकिंग माय चाइल्ड, आर यू गेटिंग? वी आर चाइल्ड एट प्रेजेंट नॉट टॉकिंग ऑफ PubAd. थोड़ी देर बाद बताऊंगा. अभी हम कुछ
फैक्टर्स देख रहे हैं जिसके बेस पे ऑप्शनल चुनना चाहिए, कोई भी हो सकता है ऑप्शनल। ठीक, हाँ सर आपने वो ढूंढा था, मिल गया? हाँ जी, अलग अलग सालों का देख लिया, उसमें दिखाई पड़ रहा होगा। अच्छा लास्ट ईयर का था, नहीं और 13-14 से देखो किस सब्जेक्ट से कितने बच्चे रिकमेंड हुए हैं। ठीक से नहीं, फाइनल लिस्ट में सक्सेस रेट देखोगे आप, टोटल देखोगे, अभी बाद में जाके देख लेना। ठीक है, इससे सबसे ज्यादा आते हैं। हाँ 5 सालों में मोर देन 1100 होंगे, राइट, मैं डेटा समझ गया कौन सा आप बता रहे हो। तो 5 सालों में 1100 बच्चे, यानी कि 200 प्लस हर साल चल रहे हैं, बुरा नहीं है। कोई सब्जेक्ट नहीं पकड़ सकता इतना। आप कहेंगे सर टॉपर तो XYZ से था, मैं एग्री कर रहा हूं, क्योंकि टॉप करना एक अलग गेम है। टू टॉप इज डिफरेंट, उसमें आपके सारे पेपर्स रोल प्ले कर जाएंगे। अभी तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि सबसे पहले लैंड कर जाएं सेफ लैंड में, उसके बाद कुछ और सोचें। So do we have to clear criteria pass of sum of total GS 1, 2, 3, 4 essay, or in individual exam we have to clear? No, beta, there is no individual clearance. Only for ethics paper they say it can be there, but till now we don't have any example that somebody failed in ethics or somebody failed in GS because of ethics. No, it's total only. Okay? So पहला पॉइंट समझ में आया सर। दूसरा दोस्त होता है ओरिएंटेशन। क्लीन करते हैं इसको। दूसरा एस्पेक्ट क्या है? ओरिएंटेशन। What is orientation? Orientation is direction of knowledge. Direction of knowledge. Okay? Nature of concepts. पहले इनको समझाता हूं। Orientation. Let's take example of my friend talked about mathematics. You are from maths बेटा? अच्छा नहीं है, तो फिर तो एग्जाम्पल देना बेकार है। कोई आपकी बैकग्राउंड क्या है? अभी आ रहा हूँ कॉमर्स पे, अभी पहुंच रहा हूँ। अभी बिल्कुल देखो, कभी भी लाइफ को समझना हो, लाइफ एक्सट्रीम्स पे नहीं होती है। एरिस्टोटल ने भी कहा था यूडेमोनिया मींस हैप्पीनेस लाइज समवेयर इन बिटवीन एपेटाइट। एक्सट्रीम्स समझने जरूरी होते हैं, क्योंकि उससे आपको रेंज मिल जाती है। सबसे ज्यादा रेशनल मैथमेटिक्स कहलाती है, इसलिए मैथ्स को हम एक रेंज में रखते हैं। और दूसरी साइड फिलॉसफी होती है, जो रैशनैलिटी उसमें नहीं होती मैथमेटिकल, ऑब्जेक्टिव रैशनैलिटी नहीं होती है, सब्जेक्टिव होती है प्योरली। ये प्योरली ऑब्जेक्टिव, वो प्योरली सब्जेक्टिव। सर जो व्यक्ति प्योरली ऑब्जेक्टिव रैशनैलिटी की जिसकी डायरेक्शन है, वो वेरिएंसेस समझने में दिक्कत होगी। Because when I talk of variations, life is full of variations. A public policy is becoming successful in Gujarat, but it may be failing in Tamil Nadu. So how will you find the differences? What factors you can assign for the differences? How will you write those points? I think you are getting my point. That is known as direction of knowledge. एक मैं आपको तैयार करता हूं वेरिएशंस समझने के लिए, वेरिएशंस एप्रिशिएट करने के लिए, समझाने के लिए कि देखो भाई, आप चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर हो, एक जगह आपने कोई और फॉर्मूला लगाया विलेज में, हो सकता है दूसरे में कोई दूसरा लगाना पड़े। क्लियर? यहां हियर वी हैव एक्चुअली प्रिपेयर्ड यू इन एडवांस फॉर acceptance of variations. So examples of also will come automatically later. ये होता है हमारा सर डायरेक्शन ऑफ नॉलेज। एक होता है नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट्स। किस तरह का कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है?
कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन प्योरली ऑब्जेक्टिव टाइप का है, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव है, या प्योरली सब्जेक्टिव है, राइट? प्योरली सब्जेक्टिव जो होता है वो खो जाता है, ऐसा नहीं है कि वो गलत है, लेकिन उसका ओरिएंटेशन बिल्कुल अलग है। दुख क्या है, खो गया व्यक्ति, अब ढूंढ के आएगा दुख क्या है, सुख क्या है, व्हाट इज दुखा, व्हाट इज सुखा। प्योरली सब्जेक्टिव थॉट्स will actually test 20-30 subjective thoughts of various, and then without claiming objectivity will present different thoughts in front of you. अब आप कहेंगे सर मुझे करना क्या है, आप तो प्रशासक हैं, यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर। वो कहेगा ये आप खुद चुने, क्योंकि एक सच्चा चिंतक, a true thinker will never advise anyone which path to go. 4 पेपर में तो आपको कंफ्यूजन हो गया कि मुझे करना क्या है। तो बेटर ये रहता है जिसमें सब्जेक्टिविटी प्लस ऑब्जेक्टिविटी दोनों हो, कॉन्सेप्ट की नेचर ऑब्जेक्टिव हो, बट दे अप्रिशिएट सब्जेक्टिविटी एज वेल, लाइक इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी। अरे भाई सीआरपीसी में सेक्शन 482 क्यों दिया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 142 में पावर्स क्यों दी? इसलिए दी, दोनों समझाता हूं। एक आदमी सरकारी नौकरी में है, अ पर्सन इज सर्विंग इन गवर्नमेंट सेक्टर, somebody lodged FIR against him or her. FIR prima facie is looking bogus, but FIR तो FIR है, सामने वाले ने चार्ज लगा दिया। हाई कोर्ट को 482 पावर इसलिए दी कि हाई कोर्ट क्वैश कर सके, उसे हटाइए, छोड़िए इस आदमी को, नहीं तो इसकी नौकरी चली जाएगी। ट्रायल होने में तो महीनों सालों लग जाएंगे। Why Supreme Court has said that bail should be granted as a matter of right and should not be just a matter of discretion? क्यों सुप्रीम कोर्ट कह रहा है यार, क्यों लोगों को जेल में रख रहे हो? FIR गलत भी तो हो सकती हैं। क्या गरीब आदमी हाई कोर्ट अप्रोच करेगा 482 के एप्लीकेशन के लिए? नहीं कर पाएगा। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 क्यों दिया? कि टू कंप्लीट जस्टिस। सर सब्जेक्टिविटी रह गई ना जीवन में, तभी तो आर्टिकल 142 लिखा गया। It may be that the existing laws may not be sufficient to reach the purpose of justice. So you do one thing, you use Article 142 as you want to interpret laws. Let that be law. और नया भी कानून बनाना पड़े तो बना दो। ये तो खुद दिखा रहा है कि लॉ जिसमें हम कहते हैं इट शुड बी कोडिफाइड, everything should be as per the procedures, there also variations can be there. Fine child? So life is full of variations. So ये होता है nature of concepts. ठीक है? अब कुछ बच्चे लिख भी रहे हैं ज्योग्राफी फॉलोड बाय हिस्ट्री एंड देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बच्चे ने लिखा क्या है समझो। एग्जाम यू हैव टू क्लियर पर्टिकुलर क्राइटेरिया फॉर द नेम इन लिस्ट। क्राइटेरिया में समझ में नहीं आया। एनीवे क्वेश्चन दोबारा फ्रेम करो बेटा, आप क्या क्राइटेरिया आप पूछना चाह रहे हो? हाँ एनीवे फाइन। सो द नेचर, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की नेचर की बात करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ नेचर एंड ओरिएंटेशन इज ऑफ दिस सब्जेक्ट वेयर यू आर आस्किंग। आपने कॉमर्स की बात की, कॉमर्स के बच्चे हो सकते हैं, ने कहा। आपने कहा सर क्या मैं कॉमर्स से अकाउंटेंसी ले लूं? इसके लिए फिर पहले एक कहानी सुनाता हूं। ये जानते हो कि 10th का मतलब क्या है, 12th का मतलब क्या है, ग्रेजुएशन का मतलब क्या है? जानते हो इस बात को? हाँ जानते हो, बताओ। चलो ये तो अच्छी बात हो गई, आपको मालूम है क्या होता है ग्रेजुएशन का मतलब? कितना, किस चीज के लिए समझ लिया आपने? हाँ
इसमें वर्किंग होती है, तो पर्टिकुलर चीज के बारे में बताओ मत, दोस्त हैं हम सब लोग। जी आप बताओ भाई, तुमने कॉमर्स पढ़ा है, ग्रेजुएशन का मतलब क्या होता है? बेसिक फील्ड। तो 10वीं का मतलब क्या होता है? 10th फाउंडेशन। 12th क्या है फिर जब फाउंडेशन बन गई? तो व्हाट वाज 12th? क्या होता है, हम सारे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपना इंटरेस्ट चूज करते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम 11th क्लास पढ़ते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम ग्रेजुएशन पढ़ते हैं, जिसमें और नॉलेज होता है और उसी में हम अपना प्रोफेशन क्रिएट करते हैं। कुछ बच्चे लिख रहे हैं बोर्ड इज 12th। नहीं, 10th भी बोर्ड होता है। एनीवे अब मैं थोड़ा बेसिक समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। पास तो सब कर गए लेकिन समझ भी नहीं किया क्या था। मैट्रिकुलेशन और 10th वर्ल्ड वाइड जितने भी नेशंस हैं उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन माना जाता है। इसलिए दुनिया में जहां फ्री एजुकेशन की बात करते हैं वहां हम 10th तक की फ्री एजुकेशन की बात करते हैं। जैसे आपके यहाँ अभी आर्टिकल 21A में अप टू 14 ईयर्स है, तो हम क्या चाहते हैं सरकार से? हम ये प्रार्थना करते हैं सरकार से कि सर, एज अदर कंट्रीज आर डूइंग इट, प्लीज मेक इट फ्री एंड कंपल्सरी टिल क्लास 10th। तो सरकार हमसे पूछेगी यार ऐसा क्या बात है, क्लास 10th में 8वीं करवा लो। Class 10 syllabus, that's why class 10 syllabus will always require updations and changes. Class 10 is simply basic a certificate that a nation will give to its citizens who have appeared and passed that exam, that you know that much which you require to transact with the environment. ठीक है? जैसे बैंक क्या होता है सीख जाओगे 10वीं तक, इस चीज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है सीख जाओगे 10वीं तक, समझ गए? तो इसीलिए बेटा हमारे टाइम में तो कंप्यूटर्स नहीं थे, आज की तो 3rd 4th से पढ़ाना शुरू करते हैं, आईटी में थोड़ा थोड़ा बताते हैं, और 10th में एक उनका पेपर होगा, वहां तक वो एक ठीक ठाक लेवल पे पहुंचते हैं, राइट? बिकॉज नाउडेज यू रिक्वायर टू डील विद दैट। सिमिलरली, as we include chapters on that why people should not be taking drugs, why they should not be doing it, health hazards of various habits. ठीक है, होना चाहिए ना एक लर्निंग का चैप्टर इस पे, जाहिर बात है। इसी तरह पहले एड्स वगैरह कौन जानता था, फिर हमने बाद में बुक्स में डालना शुरू किया। एसटीडीज क्या हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, क्योंकि वो बच्चे हैं उन्हें बता दो, जरूरी नहीं है उसके बाद वो पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, वहां तक पढ़ना अनिवार्य है। बिकॉज अदरवाइज इफ यू हैव नॉट डन इट, इट मीन्स यू मे नॉट बी नोइंग द वेरियस डायमेंशंस ऑफ लाइफ विद विच यू मे बी रिक्वायर्ड टू ट्रांजैक्ट। तो समझ में आया 10th लेवल क्या है? सो दैट इज क्लास 10th. In many countries you will not find something like intermediate or class 12th. It is pre-university and university. What they say is pre-university learning generally of 1 year, and then it is university, right beta? So intermediate is nothing but exposure to philosophical dimensions. देखो, whenever you enter into any subject, the philosophy, the literature of that subject requires some knowledge of yours so that you can comprehend it. So 12th is nothing. That's why children, 12th suddenly became difficult, if you remember. 11वीं अपनी याद करो, कितनी उम्मीदों से पंख लगा के 11वीं में एडमिशन लिया था, और क्लास में जिनके सामने इज्जत चाहते थे उनके सामने ही बेइज्जती हो जाती थी। बच्चे होते हैं छोटे, ठीक है, that happens, especially it is co-ed, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। लेकिन संतोष तब मिलता है जब मालूम पड़ता है सभी का 0 घुमा है, कोई टेंशन नहीं है भाई। नहीं तो आपसे कोई पूछे 90% बता रहे थे तुम, तो 93 10th में, यहां तो तुम पास भी नहीं हुए, पेपर में फेल हो, तो थोड़ी बेइज्जती होगी। कोई बुरी बात नहीं है 11th का शौक। Why?
you were only learning facts till class 10, and now suddenly we have exposed you to why these facts, what is the basis on the basis of which these facts have been built. अभी तक तो हम आपको सिर्फ फैक्ट्स बता रहे थे, अब हमने अचानक उन सिद्धांतों को बताना शुरू किया जिनके आधार पे फैक्ट्स बने, तो बच्चा तो घूम गया, उड़ गया। क्लास 10th में भी पास्कल्स लॉ पढ़ के आए थे, न्यूटन्स लॉ पढ़ के आए थे, लेकिन जब वो क्लास 11th में मैकेनिक्स शुरू होती है तो वहां पे तो नाव इधर चली जाती है, साइकिल वाला उधर घूम पड़ता है, समझ में ही नहीं आता है आंसर क्या आएगा, क्योंकि अब वेक्टर्स लगाने पड़ेंगे। अभी तक कोई नहीं पूछ रहा था कि कॉस का फैक्टर लगेगा या साइन का लगेगा, अब लगेगा भाई, एक ऐड होगा एक माइनस होगा। अब इसी में घूम जाते थे, वेक्टर कहाँ को लगेगा, पानी इधर बह रहा है, ना उधर जा रही है, हवा इधर चल रही है। अब टेंशन हो जाती थी, हुई थी ना, सभी को हुई होगी 11th में। आपको भी अपनी फील्ड में जो भी आपने ली होगी, एक बार तो तोते उड़ गए होंगे, ठीक है, लेकिन कोई घबराहट नहीं, बिकॉज दैट वाज योर एंट्री टू फिलॉसफी। तो ग्रेजुएशन क्या है बच्चे, तो वो हो गया सर, समझ में आया 12th क्या है। 12th is a certificate that in this particular subject you have some understanding, and yes, you are fit to pursue your graduation degree in that subject. Clear? What is graduation? Graduation means knowing, अब ध्यान से सुनिएगा, knowing all the concepts, all the principles, all the concepts, all the principles, all the theories which are related to that subject. सभी को जानना है, कुछ भी एक भी नहीं छूटेगी। इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन बता दो टीचर से, मास्टर जी से, वो काम नहीं चलेगा, सबको जानना है। और आपको ये समझ में आएगा कहाँ यूपीएससी डिफिकल्ट हो जाती है। अभी ध्यान से सुनो ग्रेजुएशन को और समझ में आ जाएगा। ग्रेजुएशन इज सिंपली द स्टडी ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ऑफ ऑल द प्रिंसिपल्स, ऑफ ऑल द थियरीज which are related to learning of that field of knowledge. Okay, fine. Graduation honors भी आप जानते होंगे क्या है। Graduation honors is nothing but learning the application of such concepts. 3 साल या 4 साल की ग्रेजुएशन होनी चाहिए। किस लिए? यूएसए में 4 साल की है, हमारे यहाँ 3, अब 4 की कर रहे हैं शायद, अभी फिर 4 की नहीं करिए, होनी 4 की चाहिए। मैं रीजन बताता हूं क्यों। 2 साल हम बच्चे को सिखाते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स और सारी प्रिंसिपल्स, थियरीज, ठीक है। 1 साल बेटा उनका कंपैरेटिव एनालिसिस। देखो, अगर आप 2 प्रिंसिपल्स का कंपैरिजन नहीं जानोगे तो एक तो उनकी फाइन लाइन समझ में नहीं आएगी, किसने क्या कहा उस बारे में, ठीक है। एक तो उनकी डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आएगा, और दूसरा आपको ये नहीं समझ में आएगा कि कौन सा वो बारीकी फैक्टर है, सोफिस्टिकेशन ऑफ नॉलेज, जो मुझे एप्लीकेशन के टाइम ध्यान रखना है। जैसे कोई पूछे कि यार कार्ल मार्क्स ज्यादा रेलेवेंट है आज, या वेबर, या इमानुएल कांत, तो ये क्वेश्चन बड़ा मुश्किल हो गया। अगर ठीक से ग्रेजुएशन की हो तो बड़ा आसान है, एकदम से दिमाग में डिफरेंसेस चलेंगे, कार्ल मार्क्स टिक 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 कंप्यूटर की तरह लिखा गया, फिर लिखा गया वेबर, फिर इमानुएल कांत। ओके ओके फाइन। हाँ, आपने क्या पूछा कि सर कौन सा ज्यादा रेलेवेंट है, तो अब आप उन सोफिस्टिकेशंस को पहचान पाएंगे। ये होना चाहिए ग्रेजुएशन 3rd, और ग्रेजुएशन फाइनल ईयर होना चाहिए इसका कि आप खुद फील्ड में जाएं, देखें किस तरह कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हो रहे हैं, फिर आप उस पर आपका टेस्ट हो, प्योरली अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ दैट सब्जेक्ट। ये 4 साल की ग्रेजुएशन होती है। यूपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ ग्रेजुएशन ऑनर्स लेवल, ये खतरे की बात है, ठीक है। अगर बच्चे कहते हैं मेरा इसमें ग्रेजुएशन है, भाई इंडियन यूनिवर्सिटी सिस्टम का ग्रेजुएशन है, ठीक है। तो खुद अपने आप को पूछ लो जोर जोर से
कि क्या मुझे सारे कॉन्सेप्ट, सारी थियरी, सारे प्रिंसिपल्स पता हैं। दूसरा, क्या सबका सही सही कंपैरिजन मालूम है, क्या एप्लीकेशन भी पता है, तब तो ले लो सब्जेक्ट, कोई इशू नहीं। और नहीं तो ऐसा सब्जेक्ट लेना चाहिए जिसको पढ़ना इस लेवल पे आसान हो विद इन अ गिवन टाइम पीरियड। ओके, मेरे नाम में डॉक्टर लगा हुआ है लेकिन वो पीएचडी वाला है, सपोज मैं असली वाला डॉक्टर होता, तब भी मैं आप बच्चों को ये नहीं कहता कि मेडिकल साइंस लो, क्योंकि मुझे मालूम है उसे पढ़ने में कम से कम 3 से 3.5 साल जाएंगे अगर आपने कुछ और भी करा हुआ है। आप क्यों नहीं, यूपीएससी तो नहीं कहती केवल डॉक्टर ही मेडिकल साइंस ले सकता है। वही एक बच्चे की दिली इच्छा थी कि मैं डॉक्टरी करता, ठीक है, नहीं हुआ उसका सिलेक्शन, हो सकता है ऐसा। उसने, भाई ने एमएससी कर ली बायोलॉजी में, अब उसका मन कर रहा है कि मैं तो डंडे गाड़ूंगा और मेडिकल साइंस लेके ही यूपीएससी को तोड़ दूंगा। ओके, इमोशनल, मोहब्बत मोहब्बत है, कुछ नहीं कर सकते आप। अब वो बच्चा अगर मेरे पास आएगा तो मैं उससे यही कहूंगा, यार देख 3-3.5 साल तो देने पड़ेंगे सब्जेक्ट को, ये 6 महीने वाला सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि पूरे जब तक लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी यूपीएससी के लायक आप नहीं बनते हो। तो मेरे ख्याल में हमें समझ में आ जाना चाहिए बिना किसी सब्जेक्ट का नाम लिए, ओके, कि किस तरह का सब्जेक्ट लेना चाहिए। दूसरा बेटा, अगर नाव पार करनी हो तो ये भी देख लेना चाहिए कि मल्लाह को खुद नाव चलानी आती है या नहीं आती, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हमें डुबो ही दे रास्ते में। एनीवे, PubAd, what is it? Now I will be telling you. So overlapping and orientation, these are very important. Backgrounds, if you still ask me, public administration is highly suitable, and rather that is the only option that you can take, provided you are not a chartered accountant and have practiced it. For those who have commerce background, कोई और optional आपके लिए है ही नहीं. Those who are from BBAs, MBAs, there is no other optional for you. MBA बिल्कुल ले सकते हो, मैनेजमेंट ले सकते हो, बशर्ते आप, पहली बात तो केवल 2 IIM से होने चाहिए, IIMC, IIMA, वहां फिलॉसफी पढ़ाते हैं और कहीं नहीं पढ़ाते, फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट कहीं नहीं पढ़ाते। बाकी जगह अगर 800 घंटे में क्लासेस खत्म होती हैं, शेड्यूल खत्म होता है, IIMC और A में 1700 घंटे की टीचिंग होती है। तो इसीलिए भूत होते हैं वहां से जो पढ़ते हैं, इतना ज्यादा काम करने की हैबिट होती है क्योंकि गधों की तरह काम कराया ही जाता है। हेवी, बहुत हैवी क्लासेस, इतना हैवी शेड्यूल कहीं नहीं है। एक्सेलराई में भी थोड़ा हैवी है बट कहीं नहीं है, ठीक है। उसके बाद बाहर है, यस, केलॉग्स में भी बहुत हैवी शेड्यूल है, केलॉग्स में भी बहुत हैवी है, यूएसए में है केलॉग्स, वहां पर भी बहुत हैवी है। कारण यह है, why this principle is, I can tell you why this principle existing. बाकी सिर्फ प्रिंसिपल का अप्लाई करना जानते हैं, तो आप समझ गए। अगर आप मैनेजमेंट भी हैं तो मैं प्रिफर करूंगा PubAd लेना, अगर मैं भी खुद दूं तो मैं PubAd लेना ज्यादा प्रेफर करूंगा। कॉन्सेप्ट, नॉलेज सिस्टम क्या है, पहली बात, जो सब्जेक्ट 3000 साल पुराने हैं, 2000 साल पुराने हैं, उनमें वॉल्यूम ऑफ नॉलेज, ओ गॉड, बहुत बढ़ चुका। किसी को कुछ नहीं मिला तो उस सब्जेक्ट पे लिख दिया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अभी कुछ ही दिन पहले जन्म हुआ है। कहते हैं 1887 में वुडरो विल्सन के एस्से से इसका जन्म हुआ। फ्रॉम 1887, essay of Woodrow Wilson, the study of public administration, was the first thing that happened in this field. Okay? तो केवल एक ऐसे हमें पढ़ने को मिला, ओहो इसे पढ़ना पड़ेगा, चलो। इसके बाद सीधे हम पहुंचते हैं 20th सेंचुरी में, ठीक। 20th सेंचुरी में बेटा 2 वर्ल्ड वॉर हो गए, तो ज्यादा ज्ञान का मौका मिला नहीं। जो मिलेगा वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि बिहेवियरिज्म आएगा, वहां से मिलेगा। 30-40 साल की पढ़ाई है बस।
अब 30-40 साल में पूरे दुनिया की यूनिवर्सिटीज में जो भी पढ़ाया गया हम सब पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं पबैड चुना मैंने। Why I opted for पबैड? जिस दिन कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल में आ जाएगा, मैं शायद कंप्यूटर साइंस पढ़ूंगा और पढ़ाने लग जाऊंगा, और भी छोटा। अरे दिमाग एक बार लगा के काम खत्म करो। रोज रोज 10,000 मील का चक्कर क्यों लगाऊंगा मैं? एक बार काम फिनिश, समझूंगा, काम खत्म हो गया, छोटा सा है। सो पबैड basically is, honestly, as an elder, I should tell you, is it possible to complete it? Yes. It can be genuinely completed within 3 to 4 months, और 4 to 5 months में तो बहुत बढ़िया कंप्लीट होता है। तीसरा फैक्टर आपको बताता हूं जिसको मैं हमेशा यूज करना चाहता हूं और आप बच्चों को भी बताऊंगा। एक चीज होती है कि हमारे कॉम्पिटिटर कौन है। ठीक है, मैं कहां हूं और मेरा जो कॉम्पिटिटर है उसका आकार ये तो नहीं है। अगर ये साइज है पहले ही किसी का, तो मैं कितना भी लटक लटक के लंबा हो लूं, हो नहीं पाऊंगा। जैसे मैं अपना देखूं, मुझसे कोई कहे बास्केटबॉल खेलोगे, मैं कहूंगा यार पहुंचेगा ही नहीं हाथ। दूसरा पहले ही छीन लेगा, डाल देगा। भाई कहाँ बास्केटबॉल खिला रहे हो? पॉइंट नहीं है, मुझे अपनी लंबाई भी तो देखनी है। भाई स्किल नहीं कि तुम कितने भी एक्टिव थे, हम यंग एज में खेलते थे, तो कितने भी एक्टिव हो आप, लेकिन जो खेल है ही लंबाई का, उसमें कैसे करेंगे? कुछ लोगों का तो हाथ लगभग पहुंच रहा होता है बास्केट में, वो हल्का सा जंप किया ही हो और बास्केट में डाल दिया, तो उनकी तो बास्केट होगी होगी। हम तो कितना निशाना, कितना कुछ दूर से मारेंगे, और क्योंकि प्रोजेक्टाइल ये बनेगा, लंबे वाले ने बीच में हाथ लगा दिया, बॉल चली गई। भाई जाएगा तो नीचे से ही। तो आप शायद समझ गए, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटीज में इंडिया में पढ़ाए जाते हैं, वहां से जो बच्चा आएगा उसके बराबर एट पार होने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या करते हैं, ऐसा चुनते हैं जहां मेरा आकार भी है और मेरे कॉम्पिटिटर का भी है। कुछ फर्क ही नहीं हो सकता, सब एट पार हैं, किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, कहीं से पढ़ के आए हो आप, 2 इग्नू में पबैड पढ़ाते हैं, एमए भी है, लेकिन सच में सब बराबर। ये जेन्युइन आर्टिकल 15 है, इक्वालिटी टू एक्सेस है, सभी बराबर हैं, कोई वास्तव में फर्क नहीं है इसमें। रीजन ये है दैट इन नो यूनिवर्सिटी इन इंडिया, नो कॉलेज इन इंडिया, एनीवन कैन बी अहेड ऑफ यू। तो एक संतोष मुझे मिला इस सब्जेक्ट में कि यार तुम कलकत्ता से हो, तुम बेंगलोर से हो, तुम त्रिवेंद्रम से हो, तुम दिल्ली से हो, वो बिजनौर से हैं, कहीं से हो, हैं हम सब बराबर। इसका मतलब मेरा पिछला प्रीवियस नॉलेज इंपैक्ट will not have an impact on my selection. Very, very serious point I am telling you. Like my child, you talked about commerce. Beta, someone who has studied from the best institute, second, has been a practicing chartered accountant. My child, you cannot compete with that child. Okay? Why to lose unnecessarily? हमेशा उस चीज में भागो जहां पता तो हो कि सब बराबर हैं। सिर्फ आज की मेहनत पे आपका भविष्य तय होना चाहिए, ना कि पिछले 10 साल की मेहनत पर। आप मेडिकल साइंस लेने जाएं, सर जिसने 7 साल से मेडिकल पढ़ा रखा है उसको कैसे कम्पीट करोगे? 3 साल तो कम से कम आपको भी पढ़ना पड़ेगा। 6 महीने में नहीं हो सकते कुछ सब्जेक्ट्स। The truth is some subjects cannot be covered. Volume of syllabus, nature of learning, can we really go to that level where it is required? This is the reason that those who take PABAD, see, many students take PABAD. I'm not saying that everyone will pass with it, no. But if you study it properly, almost guarantee that you will be in the list.
The reasons are, I am telling you objectively. See, I am more of a management practitioner. Polity, law, these type of things I understand very well. But because I have studied different aspects of success in projects in life, that's why I'm telling you. If you pick up this project, chances are very high that you will be successful. Because the reason should be valid. The reason should not be invalid. Okay? तो सबसे बड़ी बात क्या है, आप सब बराबर हैं. अब देखो मेरा रोल, साहब वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं. मेरा रोल तब आएगा जब ये सब बराबर हैं. अगर इनमें एक बच्चा इस आकार का होता तो अब, अरे एक ही सीट है, तो मेरा इन सबसे ये कहना कि तुम भाग जाओगे रेस में, झूठ है. वो सूरज है यार, तुम कितनी भी देर टॉर्च जला लो, पहुंच नहीं सकते. बढ़िया बात क्या है, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है. दिस इज नॉट एग्जिस्टिंग. So that is why I also feel encouraged when we are going for it. Students from your class also were asking, sir, should I take PSIR? Generally remained silent because there is no point of discouraging anyone. Mohabbat to mohabbat hai. But only one thing I will say, if you really take that, then child, learn the challenge and be ready to complete the challenge. अगर मैं आपसे कहूं ये किताब पढ़ लो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई चांस नहीं है. क्योंकि जब वेरिएशन आएगा ना क्वेश्चन में, आप हैंडल ही नहीं कर पाओगे. आप खुश हो कि मैं आंसर लिखा है, लेकिन आपसे बेटर लिखने वाला दूसरा था. कंपटीशन है, यहां फेल पास तो है नहीं. यहां तो आप जिस चीज में सबसे अच्छा लिख सको तब आप उसमें निकल जाओगे. राइट? सो in public administration, if you have seen, they have included some of my previous students' names. आपके पास पहुंचा था वो? I don't want to share it again. देखा ही होगा आपने. तो ऐसा नहीं है कि बच्चे लिस्ट में आते हैं, टॉपर्स भी हैं. My students have been toppers. 11th 12th रैंक तक खींच देते हैं हम. बट बेसिक पर्पस क्या रहता है वो मैं आपको चैलेंज इसलिए बता रहा हूं कि मैं आपसे कहूं 12th रैंक आ जाएगी और बाद में आपकी 240 आए तो आप कहेंगे बड़ा अंतर आ गया है. तो what I can help you in to be in the list. To top is not a guarantee for any subject. Anyone can be a topper. Who is saying you cannot be a topper? You also may be a topper. But for topper, actually all the papers should have been really better than everyone else. Top the exam is different thing. To get some minimum basic marks by which we can pass out, that is different thing. Students now are asking, Sachin, can history as optional be completed within 6 to 7 months? बड़ा अनएथिकल हो जाएगा अगर मैं जवाब देना शुरू करूंगा इन बातों का बेटा, है ना? सो अब आप खुद, मैंने बता दिया, खुद डिसाइड कर लो कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. देखो पहला आप ये देखो, क्या तुम इंडिया के बेस्ट कॉलेज से हो जहां वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है? बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं, ठीक है? अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप टक्कर दे पाओगे, नहीं तो आप कंपटीशन में ही नहीं हो. ऐसा नहीं है कि दूसरी जगह से पढ़ के बच्चा नहीं कर सकता है, कर सकता है, टाइम ज्यादा देना पड़ेगा. 1.5 से 2 साल लग जाएगा, आप खींच जाओगे. एनीवन कैन डू इट, एनी सब्जेक्ट. बस मेडिकल साइंस छोड़ दो, इंजीनियरिंग में भी 2-2.5 साल लगेगा. अगर नॉन इंजीनियर है और वो करना चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेके कर सकता है, बट टाइम लगेगा. आप मैथमेटिक्स लेना चाहें सर ले सकते हैं, भले ही आपने आर्ट्स किया हो, ले सकते हैं, लेकिन हाँ 2.5-3 साल की तैयारी लगेगी, क्योंकि उस सब्जेक्ट को पकड़ना होगा ना पूरे से. कॉमर्स किया है तो कॉमर्स का तो मैं बता चुका हूं, ठीक है? बाकी आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कॉमर्स, बीबीए, एमबीए, इवन बाकी और कोई ग्रेजुएशन अगर नहीं है तो ये सबसे छोटा और डुएबल ऑप्शनल है. तीसरी बात होती है सर्जरी कर कौन रहा है.
सक्सेस रेट ठीक ठाक होना चाहिए सर्जन का, क्योंकि आप जो डिसीजन अब लोगे ना, इस पे तुम्हारे 3-4 साल जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट ले लो, दोज हु आर माय फ्रेंड्स ऑनलाइन आल्सो, सब्जेक्ट बहुत जल्दी चेंज होता नहीं है। दिस आई विल टेल यू, सब्जेक्ट्स बहुत जल्दी चेंज नहीं होते हैं। हेल्प करेगा ना, आपने ऑलरेडी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़े हुए हैं ना, तो उससे काफी ऊपर आएगा, लेकिन हाँ वो पढ़ा हुआ है आपने, बिल्कुल। तो तुम्हारे लिए ऐसा नहीं लगेगा कि मैं ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते चलते, ऐसा नहीं लगेगा। यू विल हैव एन आइडिया कि यस आई एम टीचिंग इट, बट हियर वी विल गो in different aspects of application. Okay, that deemed aspirant to aspirant, even many of the aspirant can't qualify provide also. क्या लिखा है? that deemed aspirant to aspirant and even men. बहुत ही पोएटिक इंग्लिश हो गई शिवानी, थोड़ा समझाओ। यू आर एब्सोल्युटली राइट, हर सब्जेक्ट से फेलियर्स होंगे, इवन मेडिकल साइंस से भी होते हैं, लेकिन जिस सब्जेक्ट में भी आप जाओ, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक, यू हैव टू बी द बेस्ट इन द कंट्री। ओके, यू हैव टू बी बेस्ट, यू कैन नॉट बी सेकेंड टू एनीवन। सो if you have such a very strong background in commerce, you can take commerce also. If you have very strong background in history, someone was asking, you can take history, there is nothing wrong. भाई 3 साल वही सब्जेक्ट आपने पहले भी पढ़ा है और अब खींच दीजिए उसे। बट पढ़ने का मतलब शायद आपको समझ में आना चाहिए किस लेवल पे आप पढ़ना कहते हैं। ओके, एट व्हाट लेवल क्वेश्चंस need to be answered, that is more significant and important. Where do you understand it? Whether you have really comprehended it completely or not. That is the most important thing. Every subject will have toppers. Every subject. Topper can be from anthro also, topper can be from history also, political science also. Every subject had toppers. Every subject will have failures. क्लियर? हम सक्सेस रेट जो मैंने आपसे कहा था, इसलिए कहा था देखने के लिए कि आप देखेंगे कुछ सब्जेक्ट से टॉपर्स तो हैं, लेकिन अदरवाइज अधिकांश फेल हैं। तो रीजन क्या है? रीजन यही है कि वो बच्चे जो कुछ थे वो बहुत अच्छे थे। वो क्यों अच्छे थे? क्या हम अच्छे नहीं? हम भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन बेटा कुछ सब्जेक्ट्स में बैकग्राउंड काम करेगी, कुछ सब्जेक्ट्स में बैकग्राउंड काम करेगी। पाली लेके बच्चे क्यों निकलने लगे थे? बीच में पाली बहुत पॉपुलर हुआ था, पाली लिटरेचर बहुत पॉपुलर था। रीजन यही था, सब एट पार थे, सब एट पार थे। ओके, तो अगर आप बच्चों में से ऐसे हैं जो आप कहते हैं कि सर मेरा ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, पहले से ही मैंने 3-4 साल ऑलरेडी पढ़ चुका हूं, तो आई विल रिकमेंड you go with that subject only. But if you have doubt that my graduation was, though I secured first class or even distinction, but it was more for purpose of passing, then I will say think twice before you opt that subject. Okay? क्योंकि एक तो ये होता है कि साहब कितना मेरा उससे मैच कर रहा है, डबल काम ना करना पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं जैसे मेडिकल साइंस लूं और लगभग जीएस पूरा अलग से तैयार करना पड़े। कुछ ऑप्शनल्स ऐसे हैं जहां वो पढ़ा तो लगभग उसका कुछ हिस्सा वहां पर भी पढ़ा गया। इफ यू आर स्टडीइंग इट, देन सम पार्ट ऑफ इट लाइक सोशियोलॉजी विल हैव ओवरलैप फॉर श्योर, पॉलिटिकल साइंस विल हैव सम ओवरलैप व्हेन इट कम्स टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पेपर 2, पेपर 1 विल नॉट हैव एनी ओवरलैप, इट विल हैव सम ओवरलैप। देन geography will have overlap in GS paper 1, yes, but only in GS paper 1. It will also have overlap. Then anthro will not have overlap. Maths, no. Engineering papers, no. Economics will have overlap in GS paper 3, but it is economy, not economics. It is more of economy, but applied aspects become
economy, so it will have some overlap, but in GS paper 3. Philosophy will have overlap in GS paper 4. So children, you have to see that which paper add marks, take the syllabus, have the orientation, take marks, and just go ahead with it. Like if I say in international relations, whether PubAd will have overlap? No. PSIR will have overlap there. In IR paper, political science will have overlap. That's why I said 200 marks there only, not 250. Because 40-50 marks for IR, they are definitely not covered by PubAd. But governance part is entirely covered, because that is the orientation that we have, and we do it in detail. Okay. So generally who are from these backgrounds, for them, it is suitable. Then it is suitable for all those who are saying, now I am starting studies. My previous has not been very good, then this is good optional. Because at least you are in optional at par. In GS, everyone is at par. In optional also, if you are at par, then it is your hard work only for which you will blame or give credit. ये नहीं कहोगे कि मैंने पहले नहीं पढ़ा था इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये नहीं कहोगे. ऐसी कुछ लिटरेचर पेपर्स भी हैं और पबैड ऐसा ऑप्शनल है जो यूनिवर्सिटीज में बहुत ज्यादा नहीं है. लखनऊ में पढ़ाते हैं, उस्मानिया में पढ़ाते हैं, इग्नू में हैं, बट बहुत ज्यादा नहीं है. So you will not have like top Indian institutes, top Indian colleges like Shri Ram College. वास्तव में अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट सर. तो बच्चे तो सब अच्छे हैं, लेकिन जो रोज सुनता रहेगा, लेवल ऑफ लिटरेचर थॉट आपका बढ़ जाएगा. मैं कैसे कह दूंगा कि मैं 3 महीने में 4 महीने में आपको उस लेवल पे ले जाऊंगा? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि समय भी जरूरी है. आप यूं ही अगर हमसे रोज मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा. टाइम जरूरी है, इसका मतलब एक दिन से कुछ नहीं होता है. रेगुलर. सो हाउ कैन आई, वहां से आपने प्रोजेक्ट भी बनाए होंगे बेटा अपने ग्रेजुएशन में, मैं कैसे यहाँ पे सब कुछ करा दूंगा वो काम? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इन PubAd फ्रेंड्स, व्हाट इट इज ऑल अबाउट, अब मैं आपको वो बता देता हूं कि इसका नेचर क्या है. ओके, what it is studying. You actually study in public administration. What? If I talk of public administration, then actually what do you study in it? You study in it organization. Because why organization? Let me connect it with polity and you will understand. Source of power is polity, beta. Like I taught you in polity, let's say source of power. Now, how it will be reaching masses? How it will be reaching masses? So the structure that you require, public administration is nothing but a study of this triangle. That is public administration, entire triangle. So, secretary, minister relationship, yes, will happen, because if this was our president plus COM, then here will come departments. So the relationship between them can be a question. Why it can be a question? Because minister is a political executive, secretary is a permanent executive. ये nature होता है हमारे questions का. फिर नीचे आपसे पूछेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन. जब सिलेबस देखोगे PubAd का तो नजर आएगा. इसी तरह बीच के डायरेक्टरेट्स नजर आएंगे. तो स्टडी क्या करेंगे हम? ऑर्गेनाइजेशंस. Organizations we will study in terms of principles. पर्पस क्या है? पर्पस सिर्फ एक चीज देखना है ऑर्गेनाइजेशंस की. अगर आप में से किसी ने पहले पढ़ा हुआ है, सिर्फ एक बात, कौन सी वाला अथॉरिटी सिस्टम अच्छा है, सेंट्रलाइज्ड
या पार्टिसिपेटिव, बस इतना ही समझना है। तो अगर मैं शुरू करता हूं टेलर से, वेबर से, तो हम सिर्फ एक बात शुरू करते हैं, वो कहते हैं कि साहब सारी अथॉरिटी ऊपर दे दो, नीचे वाले को डायरेक्ट कर दो। बट देन वी विल रेज क्वेश्चंस, इफ all authority is with me, because knowledge is also authority, and you do not have that knowledge, if I will communicate something to you, whether you will really comprehend it? No. When you will not comprehend my orders, how will you follow it? Basic. हम सभी बच्चे रहे, होमवर्क भी मिलता था, कई बार तो बदमाशी की वजह से नहीं करते थे कि खेलने जा रहे हैं, बल्ला उठाया घूमने निकल गए, या जो भी काम किया। कई बार सच में दिक्कत भी होती थी कि पता ही नहीं करें क्या, हाउ टू रियली कंप्लीट इट। You want to sit with that, but you are not able to complete it. Why you are not able to complete it? Because you are not knowing. So was it my mistake or my teacher's mistake, who before giving a homework actually has not seen that whether I am capable of that or not? और 11th-12th में तो सबसे ज्यादा यही दिक्कत हुई, इसलिए सबसे ज्यादा परेशानी होती है। बेटा टीचर वो न्यूमेरिकल तो क्लास में कराता है जो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स होते हैं, जो रटे हुए होते हैं, और जो और होता है ना उसे कहता है घर से कर ला। ठीक है। और अगले दिन अगर आप वो न्यूमेरिकल उससे पूछना चाहो तो कहता है तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है, सिलेबस कौन खत्म करेगा, तुम करोगे या मैं करूंगा? और अगले दिन दूसरा टॉपिक शुरू कर देता है और उसके भी वो न्यूमेरिकल करा देता है। जो आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी परेशानी होती है कि इसने तो सब कुछ पढ़ा दिया, लेकिन बस हम नहीं कर पा रहे हैं, राइट? इसीलिए कोचिंग बिजनेस जो इतना बड़ा ये चल पड़ा, अब तो बायजू तो ट्यूशन सेंटर ले आया, कमाल है। एनीवे, आई एम नॉट अगेंस्ट देम, व्हाई शुड आई बी अगेंस्ट? 6 to 8, it means it is an established अंडरस्टैंडिंग विद द बिजनेस पीपल दैट इंडिया में स्कूल्स सुधर नहीं पाएंगे। 6 to 8 का बच्चा पहले ही क्लासरूम में हो आया, अब क्यों उसकी जान खा रहे हो कि वो ट्यूशन सेंटर पे जाएगा? अगर बहुत इलॉजिकल सी बात है, एक तो पेरेंट्स और एक स्कूल के टीचर्स। देखिए आप जिस लेवल पे हो यहां कोचिंग समझ में आती है, क्योंकि एग्जाम एक अलग तरह का है, एंड इट इज अ बेसिक जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वेयर यू विल रिक्वायर सम हेल्प, दैट व्हाट दे विल आस्क, एटलीस्ट टेल मी बाउंड्रीज। बाकी मेहनत तो आप ही ने करनी है, एटलीस्ट टेल मी बाउंड्रीज एंड टेल मी व्हाट आई नीड टू स्टडी so that I can handle it. Correct? Here I can comprehend it. But in Byju's coming out, and I was seeing some advertisements with the King Khan coming in it. तक टैब था, मुझे समझ में आ रहा था चलो बच्चे की घर में असिस्टेंस हो रही है। अब आपने ट्यूशन सेंटर, मतलब यू आर एनकरेजिंग पीपल, पहले वो स्कूल जाए फिर यहां जाए। यार उसका बचपन तो पूरा खत्म कर दिया आपने। इट्स ओवर, इट्स ओवर। लाइफ में बहुत एक्सपीरियंसेस होने चाहिए ना। वो शैतानी भी बड़े काम की होती है कि किसी की आपने हवा निकाल दी और फिर आप देख रहे हो ये पकड़ेगा तो नहीं मुझे। वो जिंदगी में बहुत सिखाती है, तभी क्रिमिनल्स नहीं बनते हो आप, क्योंकि वो छोटे मोटे क्राइम आपने कर लिए और आपने वहीं पे थप्पड़ खा लिया, समझ लिया, जो भी है आपकी समझ में आ गया कि दूसरे को नुकसान करना अनलॉफुल है, गलत बात है। ठीक है, भूख लगी थी, घर से टिफिन नहीं लाए, दूसरे का निकाल के खा लिया। प्लीज अंडरस्टैंड इट। मुल्लास का लॉ बताऊंगा इसके बाद आपको, बहुत बड़ा फिलोसफर है लॉ में। बचपन बच्चे ने खा लिया, वो रोता हुआ दूसरा चला गया जी मैं भूखा मर गया टीचर के पास। उसने कहा आपने कहा जी घर पे खाया नहीं था आज खाना। टीचर ने डांटा क्यों करा ऐसा, चलो यहाँ खड़े हो जाओ, वहां खड़े हो जाओ। जेल तो नहीं भेज रहे ना, आपने वहीं सीख लिया कि भले ही भूख भी लगी हो चोरी मत करो। फिर टीचर ने आपको प्यार से समझाया, आधा घंटे खड़े
शेयर कर सकते थे। एक शब्द सीखा कि खाने की शेयरिंग हो सकती है, अर्थात भूख लगी है तो चोरी मत करो, मांग लो, मिल सकता है। बाद के तो उससे बच गए। यस मुल्ला कहते हैं कि अगर कोई चोरी खाने के लिए करता है तो वो चोरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन लॉ हमारा जूरिस्प्रूडेंस क्या कहता है कि दूसरे के राइट तो इफेक्ट हुए। अगर स्कूल में ही वो काम हो गया होता तो ना किसी के राइट इफेक्ट होते, ना चोरी करनी पड़ती। तो बचपन बहुत यूजफुल है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल, एंड दैट्स व्हाट आई एम नॉट अगेंस्ट डेफिनेटली बायजूस, बहुत बड़े लोग हैं, बट हाँ कहीं ना कहीं बच्चों का बचपन छिन रहा। Akash also started, I think, from class 8th. They are kids. They are too young. Parents are understanding that competition is everything. No. People commit suicide if they have lack of learning. No pressure. No pressure. Learning should be comfortable. I was almost with you for 31 days, sir. 31 दिन हम आपके साथ रहे, काफी जान खाई मैंने आपकी, लेकिन मजा आया होगा, ये एक पक्की बात है। लर्निंग में थोड़ा बहुत प्रेशर भी रहा था, बट ऐसा नहीं था कि मैं फंदा लगा लूं। एक विश्वास भी था कि कल सीख लूंगा, कोई बात नहीं। गलत हो रहे थे क्वेश्चन, तुम तो खूब पढ़कर आते थे सब बच्चे, फिर भी गलत हो जाता था। तो लर्निंग इज लाइक दैट, एंड व्हाट आई सेड, इट्स बेटर टू अर्न इन द क्लास देन इन द एग्जामिनेशन हॉल। ERR, गलती यहीं कर लो बात की जगह, राइट? सो लर्निंग ऑल्सो हैज वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन एंड एस्पेक्ट्स। सो इन दिस सब्जेक्ट आपके सामने ये क्वेश्चन भी आ सकता है पब्लिक में, डू यू थिंक इन एजुकेशन पॉलिसी सर्टेन चेंजेस आर टू बी मेड? एंड आई थिंक आई हैव गिवन यू समथिंग व्हिच इज वेरी यूजफुल that you can put as an example. Don't write Byju's, don't write name of anyone, Akash or anyone, but definitely you can write that need of tuitions after school to very young students somewhere is telling us that enrichment, if has to be done, should be at schools only. And when parents are already paying fees, and it's not the question of fees, it is the question of duty also. जैसे मैंने आपसे कहा कि आप कोई भी ऑप्शनल लो, मैंने आपको सिर्फ क्या बताने की कोशिश की कि इस तरह से इससे निकल सकते हैं, बिकॉज आई एम मोर ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर। मुझे ऐसे काम करने में अच्छा ही नहीं लगता जो इनकम्प्लीट रह जाए। ओके, आई डोंट लाइक डूइंग देम। एक बच्चे ने लिखा, यस सर, बिगेस्ट चैलेंज ड्यूरिंग स्कूल टाइम। भूख लगना है, दिस इज व्हाट यू वांट टू से सचिन? इट्स ओके, सब कुछ लर्निंग है लाइफ में। तो पवेड की लर्निंग क्या है भाई? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी आसान सी एक लर्निंग है, और वही क्वेश्चन आता है। जैसे मैं आपसे पूछूं, सजेस्ट मॉडिफिकेशंस इन द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सो दैट ही कैन बिकम मोर यूजफुल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। क्लियर? ये क्वेश्चन हमारे यहां बनते हैं इस तरह के। डू यू थिंक पंचायती राज, even after 73rd amendment, has not been able to fulfill its objectives? Clear? These are, ये सब पवेड के क्वेश्चंस हैं। फिर एक हर्बर्ट साइमन पे पूछता है लॉजिकल पॉजिटिविज्म पे, डू यू थिंक लॉजिकल पॉजिटिविज्म इज पॉसिबल इवन इन करंट टाइम्स एडमिनिस्ट्रेशन? यहां उड़ गए बच्चे, क्योंकि यहां तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म पता नहीं है। मैं बता देता हूं। पॉजिटिविज्म का मतलब मैंने आपको बताया था, प्योरली बीइंग साइंटिफिक। पॉजिटिविस्ट माने प्रत्यक्षवाद। मैं इस बॉटल की एग्जिस्टेंस मान रहा हूं क्योंकि मैं इसको देख पा रहा हूं। किसी ने कहा ये बॉटल सिलेंडर टाइप है, तो मुझे सिलेंडर का कॉन्सेप्ट देखा, हाँ ओके सिलेंड्रिकल है, ठीक है। कब माना? जब मैंने इसको देख लिया। अब हटा देते हैं, मैं एक शब्द बोलता हूं टोटल, कोई इमेज नहीं बनी क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो एक होता है प्योर पॉजिटिविज्म, एक होता है जो सब्जेक्टिविज्म की तरफ जाता है। ये कह रहा है लॉजिकल पॉजिटिविज्म, ह्यूमन लाइफ में प्योर पॉजिटिविज्म पॉसिबल नहीं है। आपने मुझे लगभग 1 घंटा 10 मिनट सुन चुके हो।
अब मैं अगर आप सबसे पूछूं एग्जैक्टली क्या क्या सुना था, तो किसी को कुछ बातें याद रही होंगी, किसी को कुछ याद रही होंगी। अगर पॉजिटिविस्ट होते तो रिकॉर्डर होते कि सर आपने पहले गुड मॉर्निंग बोला, फिर अपना नाम बताया। वो प्योर पॉजिटिविज्म होता, लेकिन ये प्योर पॉजिटिविज्म नहीं है, लॉजिकल। So Herbert Simon talks of logical positivism. Means yes, we need to be scientific, but understanding the constraints which human beings have in their knowledge. That's why he introduced the concept of satisficing. Okay? Anyway, तो अब वो आपसे पूछेगा कि do you think that this type of satisficing is applicable in actual day of administration? ओके, करेक्ट। अब आपको एप्लीकेशन देखना पड़ेगा। अगर हाँ कहना है तो आप बताओगे यस सर, ईसीडीए डिस्ट्रिक्ट्स में जो होता है सीडीओज कभी कभी स्कीम्स को उस तरह से भी इंप्लीमेंट करते हैं, इसलिए उन्हें डिस्क्रिशन भी चाहिए, दे रिक्वायर डिस्क्रिशन। बिकॉज अगर सरपंच आपसे कह रहा है कि ना जी मैं तो पहले ये कराऊंगा गांव में, अगर आप अड़े रहोगे काम होगा ही नहीं। तो आपको सरपंच को कॉन्फिडेंस में लेकर आप कहोगे चलो बिल्कुल चौधरी साहब ये काम करते हैं, लेट अस गो अहेड विद इट। ओके, बिकॉज यू आर मोटिवेटिंग, यू आर मोटिवेटिंग। जैसे छोटा बच्चा आपका कोई नेफ्यू नीस कभी जिद करने लगे कि ये वाला चैप्टर मैं पहले पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, आप कहें नहीं पहले ये पढ़ो, तो उसका इंटरेस्ट हो जाएगा। आप कहते हैं चल यहीं से शुरू करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये क्या है? लॉजिकल पॉजिटिविज्म है, लॉजिकल पॉजिटिविज्म है। ये नहीं तो ये, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर इररेशनल, आई एम सेइंग यू आर रैशनल बट बाउंडेडली रैशनल। Every person takes his decisions to the best of his understanding. So decisions of two people will definitely vary, because yours is boundedly rational by your knowledge that you are having at that point of time. Hers are boundedly rational by her knowledge at that given point of time. ठीक है? तो साइमन क्या कह रहा है? साइमन कह रहा है कि देखो भाई, अपनी तरफ से जितनी भी नॉलेज है उसको यूज करने की कोशिश करो, बस इतनी सी बात कह रहे हैं। दिल्ली में एक केस हुआ, अभी न्यूज़पेपर्स में है इस समय, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट। नागालैंड का आपने शायद पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, somebody died in a hospital of Delhi, okay, due to gynecological issue because a dentist was treating. चक्कर आ गया ना आपको भी सुनकर? काफी इरेशनल लग रही है बात। एग्जैक्टली यही हुआ। एक हॉस्पिटल था शायद गुरुग्राम में, गुड़गांव में, उसकी सीबीआई इंक्वायरी हुई है अभी। एक लेडी थी, उसको वहां पे एडमिट कराया, शी वाज रिक्वायरिंग सम अर्जेंट अटेंशन। एंड क्राइम क्या हुआ? क्राइम समझ लें, जो डॉक्टर था हॉस्पिटल का, उसने एक डेंटिस्ट को बोल दिया वहां पर कि तुम प्रोसीडियर करो। प्रोसीजर का मतलब यू शुड हैव द नॉलेज। देखो, अगर ये होता कि साहब वो खाली एमबीबीएस था या थी, उससे कहा, तब भी कोई क्राइम नहीं बनता। प्रोसीजर उसने सीखा हुआ है। देखो, जिंदगी और मौत में बहुत सारी चीजें होती हैं, और जरूरी नहीं कि मुझे उतनी नॉलेज हो जितनी और किसी को हो, लेकिन हाँ, मैं जिस चीज को जानता हूं ये बात पक्की है। सीबीआई ने क्यों केस रजिस्टर किया? उनका कहना ये था, अब तो अरेस्ट भी हो गए, कि यार ये तुम हमें कॉन्सेप्ट से समझा दो कि डेंटिस्ट कैसे गायनेकोलॉजिकल प्रोसीडियर कर सकता है। बस ये समझाना है, बात की तो कोई बात ही नहीं। इसलिए बेल भी ग्रांट नहीं हुई, क्योंकि जज भी कहेगा यार ये क्या है, ये तो लगभग क्वैक वाली कहानी हो गई ना। आप कह रहे हो कि सर नहीं, मैं तो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हूं, किस चीज के? दांत के। यहां पर कैसे आ गए भाई? आर यू गेटिंग इट? तो उस केस में हुआ। लॉजिकल पॉजिटिविज्म की भी एक लिमिट है ना, आपको उस चीज को आना चाहिए था, देन ओनली यू शुड हैव बीन टेकिंग इट अप।
क्लियर? सो दिस इज व्हाट हर्बर्ट साइमन विल बी टॉकिंग. सो अगर सरपंच कहने लगे कि नहीं साहब मैं तो वैद्य भी खुद ही बनूंगा, तो सीडीओ रोक देगा, कहेगा जेल जाना है क्या चौधरी साहब? आप ये कहो कि साहब हमारे यहाँ पर BAMS को बिठा दो, MBBS को भी बोल दो कभी कभी आ जाए, तो समझ में आती है बात. आप खुद नहीं करेंगे ये काम. औषधालय बनवाइए, मेडिसिन रूम, बट दिस मेडिसिन रूम हु विल बी गिविंग मेडिसिन्स? इफ दे आर आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, देन आयुर्वेदाचार्य, that is BAMS, and if it is allopathic medicine, then somebody who is MBBS should be prescribing this. Very rational. Clear? Logical positivism कहाँ आएगा? अगर MD होता तो क्राइम नहीं होगा. अगर MBBS ने कोई दवाई दी और पेशेंट मर गया, क्राइम नहीं होगा जब तक कि इरेशनल ना दे दिया हो. दो ग्रुप्स जो साथ में दिए ही नहीं जा सकते वो दे दिए, तो जाहिर बात है फार्माकोलॉजी तो पढ़ी थी तुमने, वो अलग बात है तुम नकल से पास हुए, लेकिन कोर्ट तो पूछेगा ना कि यार ये ग्रुप तो दे ही नहीं सकते तुमने, दे कैसे दिए? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अदरवाइज नॉट. Otherwise not. You had some other disease, I diagnosed for some other disease, though basic symptoms of both the diseases were same, it's okay. Nobody can punish me because logical positivism will exist. लिख लेंगे आंसर, बढ़िया सा आंसर बन जाएगा लॉजिकल पॉजिटिविज्म का. ये हमारे पबैड के क्वेश्चंस होते हैं. मैंने आपको एक प्रिंसिपल्स वाला भी सिखा दिया. आपको FW टेलर का नाम पता है बच्चों को, है ना? चलो उसी पे एग्जांपल देते हैं. FW Taylor talked about scientific management, right? Sir, you are also from commerce? आपकी बैकग्राउंड क्या है सर? लाइफ साइंसेस को. तुम्हें तो कुछ ज्यादा ही दिल पे लगा होगा आज. एनीवे टेलर. अब हम टेलर को अगर मैं समझूं तो इतना समझता हूं कि टेलर फोकस्ड ओनली ऑन दिस पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एम आई राइट? याद आ रहा है कुछ? क्या था बताओ? FW टेलर बताना भाई, 1 मिनट, डरो मत. टेलर याद है? FW टेलर, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट याद है कुछ? ये नहीं पता. आपको याद है? हाँ आ जाओ आप आ जाओ, आप रुको बेटा. हाँ क्या? इनके बाद आप बताइए. हाँ बोलिए. ये आपको इस डायग्राम से देखो बोलने की कोशिश कर रहे हो, नहीं बनती बात. नकल करने के लिए ना दूसरी कॉपी में क्या बनाया है पूरा पढ़ा हुआ होना चाहिए, नहीं तो खाली उतना बना के आ जाते हैं. कोई बात नहीं, सीखेंगे. यस सर. He gave 4 principles of scientific management. बता रहा हूँ अभी. चलो कोई बात नहीं. बस मेरे ख्याल में आप जो मैं पहले समझा रहा था सब समझ गए हो. ठीक है, आप अच्छे समझ में आ गया होगा कि हम वो ले या नहीं ले. यस मैम. डेवलपमेंट ऑफ ट्रू साइंस ऑफ वर्क, फर्स्ट प्रिंसिपल, राइट. शाबाश, गुड, impressive. 4 principles: development of true science of work. Second, scientific selection and training of worker. Third, bringing together the scientifically developed work and scientifically selected worker. And third, sharing of responsibilities between both managers and workers. शाबाश, आपने बहुत बढ़िया बताया. अब ये बताओ ये क्या है? शाबाश. टेलर की क्या गलती है या वो क्या सोच रहा था? टेलर को ये लगा जितनी भी इनएफिशिएंसी है वो इस वजह से है कि जिन्हें नॉलेज नहीं है वो, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था थंब रूल, वो लोग थंब रूल यूज कर रहे हैं. थंब रूल का मतलब ह्यूरिस्टिक्स, HEURISTICS, ह्यूरिस्टिक्स.
So Taylor said that here are managers, they have knowledge. यहां क्या है? नॉलेज है. एब्सेंस ऑफ नॉलेज यहां पे है. थंब रूल कहां यूज हो रहा है? इस लेवल पे थंब रूल यूज हो रहा है. तो उसने साइंटिफिक मैनेजमेंट में अगर फोकस किया तो किस लेवल पे किया? केवल इतने पे. अब जब ये फेयोल से आपको कंपेयर कराएगा तो आप खट से कर जाओगे कि पहले तो आपको मालूम है टेलर ओनली फोकस्ड ऑन द शॉप फ्लोर लेवल, दैट इज द बेसिक लेवल, ट्रांजैक्शन लेवल, as he considered that workers lack in knowledge and they are involved in hit and trial which leads to wastages. है ना सर? एक आदमी हिट एंड ट्रायल से कर रहा है तो वेस्टेजेस होगी. जैसे घर में केक बनाया होगा ओवन में, खराब किया होगा माइक्रोवेव में, सबने किया, मैंने भी किया, तो कोई ऐसी बात नहीं है. वो हिट एंड ट्रायल पे थे ना, ऐसे ही देख के वीडियो बनाने लग गए. वो तो टाइम भी गया, सामान भी गया, बाद में बाजार से मंगाया. तो हिट एंड ट्रायल है. वो कहता है कि नॉलेज यहां पर आप क्या बना दो? वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क. टेलर का क्रिटिसिज्म इस बात पे होगा बेटा कि वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क पॉसिबल है क्या? बताओ. अब तो बता रहा हूं वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क माने मैं तुमसे कहूं तुम्हें ऐसे ही आंसर लिखना है, ऐसी ही कॉपी पे लिखना है, क्या ये प्रैक्टिकल है लाइफ में? नहीं. तुम्हें तुम्हारा डिस्क्रिप्शन कुछ जरूरी है. I can help you, assist you, remaining you have to do. ठीक है? क्योंकि अगर मैं कहूंगा कि नहीं एक ही रास्ता है तो वो गलत है. इक्वी फाइनलिटी पे जाते हैं हम. जाते हैं किस पे? इक्वी फाइनलिटी. तो बेटा ये सबसे शुरू की थियरी हो गई और कंटिंजेंसी थियरी सबसे आखिरी थियरी हो गई. फर्स्ट थ्योरी जब पढ़ाना शुरू करेंगे तो ये होगी, जो क्या कहती है? वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क. ठीक है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ऐसे ही काम करना होगा. वी विल सेट रूल्स. बस उसी तरह से वो सबको ग्रांट्स देगा, सब कुछ एक सा करेगा. फिर आखिरी थियरी है जो लास्ट है कि चलते चलते हम कहां पहुंचेंगे? कंटिंजेंसी अप्रोच पे. जो कंडीशंस एनवायरनमेंट में हैं उसके हिसाब से एडजस्ट कर जाइए. द कंडीशंस विच आर इन एनवायरनमेंट यू शुड एक्चुअली एडजस्ट अकॉर्डिंग टू देम. गॉट इट? कितना बड़ा अंतर आया. ये जो जर्नी है ये आपके, हम कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में थिंकर्स की जर्नी है. यही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऑर्गेनाइजेशन की जर्नी है और कुछ नहीं है. दिस इज व्हाट यू नीड टू हैव. थिंकर्स हैं पबएड में, लाइक वेबर. सोशियोलॉजी में पढ़ोगे तो जाहिर बात है 100-150 पेज में पढ़ना पड़ेगा उसे, क्योंकि पूरी सोसाइटी पे उसके थॉट प्रोसेस. पबएड में पढ़ोगे तो 8-10 पेज में पढ़ना पड़ेगा वेबर को. क्यों? केवल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे जो वेबर ने कहा है बस उतना ही पढ़ना है, उसके अलावा से हमसे कोई मतलब नहीं. तो थिंकर्स हमारे यहाँ जो आते हैं वो बहुत सारे आएंगे, लेकिन उनका पढ़ना उतना ही है जो उन्होंने किसके लिए कहा है? अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच एंड अथॉरिटी, नथिंग एल्स. तो ये थिंकर्स होने के बावजूद भी इसको बहुत छोटा बना देता है. ओके? थोड़ा रैशनल है. जो लोग इंजीनियर्स हैं उनके लिए क्यों आसान पड़ता है ये सब्जेक्ट? थोड़ा रैशनल है, मैथमेटिकल टाइप है ना. एक बार समझ में आ गया तो रटना नहीं. यू हैव नॉट टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन. पबएड में मार्क्स कैसे बढ़ाएंगे? जैसे 250 तो मैं कह रहा हूं इसके नजदीक आपके आ जाएंगे. इसके अलावा कैसे बढ़ाएंगे मार्क्स? हाउ विल यू एक्चुअली गो अहेड? हाउ विल यू इंक्रीज? योजना पढ़ के, योजना से बढ़िया, कुरुक्षेत्र से, यहां से हमारे मार्क्स बढ़ते हैं. 300 क्रॉस वो बच्चा करता है जो उस साल की योजना, somewhere from that year's योजना, the one who is able to push, so that child will cross 300 in PubEd. The one who is able to push certain administrative examples, like you write from DOPT,
Like you take example from Ministry of Personnel, that certain directions have been provided. Okay, in regard to this, like Karma Yogi, Shabash, Karma Yogi. So these are the things which increase our marks. Clear? When we are studying it, we actually are getting prepared for our entire, because entire constitution is here. So polity part becomes very strong. Okay, though I have already strengthened that, but और detail में पढ़ते जाते हैं यहाँ पर. So polity is guaranteed. Pre becomes, because we study Kautilya, we study Mughals, okay, we study British India for their administrative aspect. So that part is also strengthened. So pre is helped. Mains to grossly help hota hai. Because when you are talking of disadvantaged groups, their development, so you cover GS paper 1, role of women, all that, development and all, and also GS paper 2, where their schemes are there for upliftment. You cover both of them. Remaining part of governance entirely is covered. That is entirely covered. We have law and order as a topic in our syllabus. So GS paper 3, internal security is covered. Okay. Then we have miscellaneous issues and basic aspects. We have your ethics paper is covered. So when I understand orientation of this subject is helpful in that manner. Okay. So now your queries, I have told you, as you were saying, how it will be useful. Previous orientation, those who are from commerce, those who are from BBA, engineering, okay, or MBA, for them, it is the most obvious choice. Life sciences and other subjects. Why it is choice and why it should be? Because everyone is at par. And if you have loved understanding Indian polity, then definitely this subject can be easy for you. Because polity, when we talk, we were talking its applications only. We were not just talking why president's system should be there or why this. We were not talking much about that. Rather, we were talking about its application aspect. That is public administration. That is public administration. So public administration is administration in action. Radhika is asking, what about BSc? I think, Radhika, we have covered it. Any subject, beta. देखिए, आपने BSc किया, you did your BSc. If you are too good at any of your subject, I will say go ahead with that. But how to really have a litmus test of your knowledge? Very simple. Just check whether you really know all the concepts, all the theories, all the principles, comparative analysis, and their applications. Then you will start enriching for examination. In PubAd, I will have two challenges as a teacher. As everyone is new to this subject, so I will have to teach you concept, and then I will have to take you to that level also, that is honors level. Now, you will ask me, sir, is it possible to cover it in 4.5 months? Yes, because it is small. If this subject would have been double or triple what it is, like many other subjects are there, which are even up to 10 times of it. Okay, I'm not naming them. They're very popular, but they are into 10 times of what subject syllabus you cover in it. So when I'm saying 4.5 months for it, so you can say it how many months they may require. Okay, but anyway, let people select. There's no problem in that. So what we want to do is, we need to comprehend concepts, and then also we need to immediately see comparative part, and then we need to see its application aspect. ठीक है? ये 3 डायमेंशंस हमें हर टॉपिक की करनी होंगी, क्योंकि तब तक आपकी नॉलेज किसी काम की नहीं है. करेक्ट? बाकी करोल बाग, what we say is a mandi. Okay? And number of people misled also. That is what
told you, be objective in your selection. Okay? Be objective in your selection. It should not be the idea, क्योंकि जो भी आप ऑप्शनल ले लोगे यार, ये वो मैरिज है जो आसानी से डिवोर्स नहीं होता. तो एनलमेंट पॉसिबल है मैरिज का, दूसरा ऑप्शनल चुनना, लेकिन कुछ साल फिर चलना पड़ जाता है और इस पे आपका सिलेक्शन डिसाइड हो जाएगा. तो जो भी ऑप्शनल लो, काफी सोच समझ के लेना चाहिए. ठीक है? हाँ, कुछ मार्क्स मैं गारंटी कर सकता हूं, इतने आ जाएंगे अगर रेगुलर रहोगे तो. और जो एब्सेंट वाले स्टूडेंट हो तो बिल्कुल मत लेना. और दूसरा, थोड़ी डांट खा सकते हो. अगर ईगो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है आपकी तो फिर मत लेना मेरे साथ मत लेना. क्योंकि अगर आप गलत करोगे तो मैं बता दूंगा यार यू आर रॉन्ग, फिनिश. आई एम नॉट हियर टू प्लीज यू. If you are ready to work hard, if you think you can be really regular, if you are not thinking it is just fun time or merry making that we come to the class, then you are most welcome on this board. क्योंकि कोचिंग का मतलब होता है, अगर तुम लेक्चरिंग और कोचिंग का फर्क समझते हो, हम कहते तो हैं हम कोचिंग में, अधिकांश कोचिंग होती नहीं है. क्योंकि कोचिंग इज लर्निंग बाय डूइंग. कोचिंग का सक्सेस रेट बेटा 87% है अगर सच में कोचिंग हो जाए. बट कोचिंग इज वेरी कॉस्टली. ओके? क्योंकि कोचिंग में कोच आपसे कराता है, खुद तो कॉफी पीता है स्टेडियम में बैठ के, आपसे कहता है राउंड लगाओ. फिर वो नोट करता है कि आप गलत पैर पे प्रेशर डाल के भाग रहे हो. फिर वो केवल उसका करेक्ट कराता है, वो भी 10 दिन बाद. पहले आपको दौड़ने देता है. जब आपको पता चलता है कि हाँ इंप्रूवमेंट आया, फिर वो आपका बॉडी पोस्चर देखता है. कोच उस काम के लिए होता है. सो कोच इज टू सी कैन यू रियली राइट आंसर्स और नॉट, आर यू लर्निंग इट और नॉट. कोचिंग इज डिफरेंट. lecturing is success rate 12 to 15% highest. That's why in most of the world universities now lecturing has been done away with. Lecturing is just 12 to 17%, rest is learning by doing. Teachers assist. आप खुद अपने प्रोजेक्ट तैयार करते हो, देते हो. यहां पे हम ऐसा नहीं कर सकते 4 महीने में खत्म करना है. अगर 4 साल होते तो मैं बिल्कुल यही करता आपके साथ. If it would have been a 4-year course, exactly I would have done it. I would have asked you to write write-ups on different thinkers. और आप लेकर आते, मैं काट देता, कहता इस डायरेक्शन से लिखो, बार बार लिखवाता. क्योंकि धीमे धीमे मुझे मालूम था आपकी लर्निंग हो जाएगी. आप गाली देते यार क्या टीचर है कि बार बार लिखवा रहा है. एक्चुअली वो बहुत अच्छे टीचर्स थे जिन्होंने हमारे साथ ये किया था. जनरली इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में ऐसा होता है. हम उन्हें सबसे ज्यादा बुरा कहते थे, वो सबसे अच्छे थे. और जिन्होंने फाइनल ईयर में पढ़ाया, अगर सोचे तो वो सबसे खराब थे, क्योंकि वो कुछ कहते ही नहीं थे. दे वर ऑल बिजी इन देयर प्रोजेक्ट्स. बड़े लोग होते हैं ना वो लोग. ओके? दे वर ऑल बिजी इन देयर प्रोजेक्ट्स टू दैट एक्सटेंट दैट दे हैड वेरी लिटिल टाइम टू करेक्ट द स्टूडेंट. कहते थे ठीक है यार, ओके ओके फाइन. तो बहुत ज्यादा मार्क्स आते हैं फाइनल सेमेस्टर्स में, परसेंटेज बनती है उनसे. ये आखिरी सेमेस्टर्स में बहुत नंबर आते हैं, 78%. सडनली आपको लगता है मैं विद्वान हूं, जबकि फर्स्ट ईयर में ज्यादा पढ़ा था, जहां 60% मुश्किल पढ़ रहे थे, 52, 54. और आखिर में बहुत कम पढ़ा और वहां पे 78, 83. उससे परसेंटेज इंप्रूव होती है. सच में अगर आप पूछो लर्निंग कहां थी शुरू में, बिकॉज लर्निंग इज बाय डूइंग. So you should be ready to write answers, then only take this subject. Because I do not want that you take the subject and later on anyone, anywhere, lot of the students have been of mine from Hyderabad, okay? Lot of them. I taught this subject for almost 23 years at Rao's only. So lot of them were from Hyderabad. Nobody can say I scored less than, if I appeared at means less than 240 or 250. इतना भी कैसा भी स्टूडेंट था, कोई ये नहीं कह सकता जी मेरे नंबर इतने का है.
कहते पबैड तो हो जाएगा. यू जस्ट आस्क एनी ऑफ माई स्टूडेंट, दे आर अपियरिंग नाउ ऑल्सो, सम ऑफ देम, किसमें सबसे कम डर लगता है? कहते हैं पबैड, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 4 तो निकल आएंगे. इनमें कौन सा सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो तुम अब, कि पबैड है देख लेंगे तभी हो जाएगा. Why? Because at that time they were serious. बुरा जरूर लगा होगा कि कोचिंग में भी बेइज्जती करता है साहब, ऐसे थोड़ी होता है कोचिंग में, हम तो इतने बड़े हो गए हैं, ये आदमी तो बेइज्जती करता है सामने. बट लेटर ऑन इट हैज हेल्प्ड, इट हैज हेल्प्ड. ओके, सो दैट इज व्हाट, if you can take that much pressure, learning is my responsibility, that to teach you how to learn. Nothing will come out of your notes, that you must have seen my class notes of polity also. वो तो स्टैंडर्डाइजेशन है, गारंटीड है, उससे बाहर नहीं आएगा. पढ़ना आपको पड़ेगा, क्योंकि वो आर्ट है. एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस लिखने हैं वो आर्ट है. फाइन. एनी क्वेरीज ऑफ योर्स? साहिल इज आस्किंग, सर पॉलिटी से स्ट्रिक्ट होगी पबैड क्लास? पॉलिटी में स्ट्रिक्ट था मैं, थोड़ी थोड़ी बेइज्जती बस इतनी होती है. स्ट्रिक्ट और क्या? अच्छा, जब आंसर्स चेक होते थे, हाँ उतना तो रहेगा. और ऑप्शनल है, देखो पहले 2 महीने तो थोड़ा सा लगेगा आपको कि स्ट्रिक्ट हो, फिर ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसके बिना लर्निंग नहीं आएगी ना यार, है ना. 4 फीट के स्विमिंग पूल में स्विमिंग तैयार कराने से स्विमिंग थोड़ी आती है. आखिर में तो नदी में तैरना है ना. नीचे की लेयर पानी अलग स्पीड पे चलता है, ऊपर की लेयर अलग स्पीड पे चलती है, तभी तो नदी में डूब जाते हैं. वो सीखना है ना हमें. नदी में डूबने के कारण क्या यही होता है, और थोड़ी कारण होता, नहीं तो जिसे तैरना आता है डूबेगा क्यों? एक बार अगर आप ऐसे हो गए नदी में, सीधे रह गए तैरने के टाइम, तो उल्टे हो जाओगे, पलट देगा पानी आपको, क्योंकि 2 अलग अलग लेयर्स, थोड़ा थोड़ा में उनमें डिफरेंस होता है. नीचे वाली थोड़ा अलग स्पीड पे जा रही होती है वेलोसिटी पे, ऊपर वाली अलग जा रही होती है, थोड़ा सा फर्क होता है, और उस थोड़े से फर्क में दिक्कत आ जाती है. राइट. एनीवे, सो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट तो रहेगी भाई. हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू कंप्लीट पबैड? 4.5 months. ठीक है, और जरूरत लगेगी तो और भी ज्यादा पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर शुरू करेंगे तो फिर पूरा करेंगे, फिर बीच में नहीं. दैट इज व्हाट इट विल बी. एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? यस मैम. Rajya Sabha TV debates are useful, my child. News are never useful. They have some debates on Rajya Sabha TV. They become useful because you come to know certain factual points. See, my child, opinions will not be that very useful for you, because opinions of speakers will not be very useful. Radhika, I'm just giving answer to you. हाँ, पहले इस बच्ची का जवाब दे दो. So Rajya Sabha TV, when you are using, I also watch it. Somewhere I will be also using it in your notes only. Okay. My notes, one more thing I should tell you, they are useful for maximum 2 attempts. Examples. Rest notes will remain same. क्योंकि मैं काफी एग्जाम्पल्स यूज करता हूं, उसके बिना आजकल यूपीएससी निकलती भी नहीं है. तो 5 साल की पंचवर्षीय योजना मत बनाना. 23, 24, 25 तक यूजफुल रहेंगे, उसके बाद नहीं. उसके बाद सब कुछ चेंज हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन में. अभी 24 तक तो सेम गवर्नमेंट है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. अगर आगे भी यही गवर्नमेंट रही तब मेजर चेंजेस नहीं आएंगे. अदरवाइज इफ गवर्नमेंट विल चेंज, changes take place and we immediately incorporate them. Radhika Bahu, not good at subject, I opt for BSc, so may I go for PABAD? And I too was thinking about it, as I have good interest in polity too. Please tell sir. I have already told it, yes, anyone can go for it.
because everyone is at par. In this subject, a question should not be there that can I go for it or not. In this particular subject, it is not there. Only thing is that for 4 months or 4.5 months, you can really work hard. Because with this subject, as I talked about, your prior knowledge, I will consider to be 0. So I will start from scratch. Okay? I will consider you don't know anything. Because in PubEd, how will you be knowing? That's not possible also. So I will not expect that you know certain things. I will start from scratch. But in that, I will only expect that whatever concepts we are delivering, you really are comprehending them. It should not be fun time. Don't have fun time. That's not possible with me. Okay? Anything else? Yes. Radhika, so you can take the subject. Radha Sharma, I have answered you. And you are not good at any subject, Radhika, earlier. But now when you are ready to study, you can do it. And I think I gave you the example of my own student, of Manoj Kumar Sharma. His name also was the same only. He is an IPS. He was class 12th fail. And he said he passed 10th also by cheating. But he became IPS. So what you were yesterday, nothing, it will not have any impact on your tomorrow. Your today may be decided by your previous efforts. But tomorrow will not be decided by your previous efforts. Tomorrow is going to be decided by your efforts today. So it has nothing. Never think about these things. You might have been a topper and you may fail at UPSC. I have seen IITians failing at UPSC. 3 attempts failed. Here, game is of only one, my child. That is what I will share with everyone. Think like a horse and work like a donkey. There is no shortcut here. Okay? I will use one statement that may be useful. We say, keep walking. You will get a chance to leap in between. But if you will think that you will leap in the first instance, you may fall flat on the ground with your face down and you may hurt yourself. So keep walking. पहले चलना सीखो. मौके मिलेंगे. सीधे jump मारने के भी मौके मिलेंगे. You will get them. But first of all, learn. That's what is more significant. So public administration, what it is, I think you got the nature. Okay. Anything else you want to know? DS जो मेन सब्जेक्ट्स में मतलब होते थे उसके साथ में किस अकॉर्डिंग टाइम मैनेज करना चाहिए और देखो पबैड जो बच्चा कर रहा है उसे अपना सबसे पहले जीएस पेपर 2 शुरू कर लेना चाहिए साथ साथ. ठीक है. कब शुरू करना है वो भी बताऊंगा, जब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन शुरू होगा पबैड में. और दोनों को एक साथ स्ट्रॉन्ग करके ले जाओ. उसी टाइम जीएस पेपर 1 के क्वेश्चंस, और जब लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े तब जीएस पेपर 3 निकाल ले जाओ. जब बजट पढ़े, क्योंकि बजट भी हमारे यहाँ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, तब चुपचाप इकोनॉमी निकाल ले जाओ. 3rd पेपर जीएस पेपर 3. तो जो इस तरह से करता जाता है उसका तो साथ साथ लगभग काफी नंबरों का हो जाता है. उसको तो 500-600 नंबर का ही और तैयार करना होता है, क्योंकि 500-600 आराम से इधर से निकल जाते हैं बड़ी आसानी से. ठीक है. एक आध ऐसे भी लिख कर देख लेना चाहिए. जब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के चैलेंजेस आपने पढ़ लिए, ऐसे लिख मारो. पबैड क्या बच्चा इसलिए निकल जाता है, और कोई ऐसा नहीं है कि पबैड सब्जेक्ट में, पबैड में नंबर तो इतने आए लेकिन उसके बाकी सब्जेक्ट्स में नंबर बहुत कम नहीं आ सकते. ओरिएंटेशन मिल जाती है ना, लिखना कैसे है आंसर. तो जीएस पेपर्स में ये नहीं हो सकते कि उसके 60 नंबर आ जाएं, पॉसिबल नहीं है. 80 तो क्रॉस करेगा ही करेगा, ये पॉसिबल नहीं. ओके. देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सच में देखा जाए तो मिक्सचर है सब्जेक्ट्स का. नॉलेज ऑफ लॉ, नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस, नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी. ठीक है. इनको मिलाकर एक एनर्जी बूस्ट सोर्स बना दिया.
पबाइड को तो हिंदुस्तान में किसने पॉपुलर किया है बताइए? यूपीएससी ने, बस। और किसी ने तो किया ही नहीं। हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज, हाउ मेनी पीपल नो अबाउट पबाइड? वेरी फ्यू. बट students who have gone for UPSC, they all know about it. 1989, this subject was separated from management. Earlier, there used to be a paper from 1955 till 1987 that was known as Management and Public Administration. But in 1989, the two subjects were separated. Management separate and Public Administration separate. Okay, the need was that let those who are coming to this field should be having some basic interest in field of administration. और कोई पर्पज नहीं था. ओके, कुछ कमेटीज ने तो कंपलसरी कहा था इस पेपर को कंपलसरी कर दो. इसलिए आप देखिए जीएस के पेपर्स में काफी इसके आपके सिलेबस के हिस्से मिल जाएंगे सीधे सीधे, और किसी सब्जेक्ट्स के नहीं मिलते हैं, इसके सीधे हिस्से मिल जाते हैं. ओके, तो अगर देखें तो somewhere it is more guided towards you, but definitely we expect that you are not just superficial learner. You can actually give me some genuine examples, like हमने हर्बर्ट साइमन और टेलर की बात की. So you can quote me example of limitations or application from rural development, from district administration, from planning, anywhere, no problem. वो एग्जाम्पल्स बढ़िया देने चाहिए आपको, तो नंबर आपके 280 जंप करते हैं. So this is what we expect out of you. Okay, so two things that we actually comprehend in it, that how the subject is expected to move. That is what we learned. जी, और पूछिए कुछ. Can a person who is in busy job can start preparing? Yes, so many students have actually passed, beta. Yes. Book. See, books, definitely 2-3 books you should. I will also ask you, though I say a joke in it. भाई बुक्स इसलिए पढ़ लो कि पता चल जाए टीचर सही पढ़ा रहा है क्लास में. टीचर में भी तो चेक होना जरूरी है. वो तो मजाक की बात हुई. 2-3 बुक्स इसलिए पढ़नी चाहिए. नोट्स जो होते हैं वो बहुत ही क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है. दे आर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड. इनिशियली व्हेन यू विल बी गोइंग थ्रू बुक्स में, क्योंकि मोटा करने के लिए किताब में बहुत सारी चीजें लिखी जाती है. आप जब उसे पूरा पढ़ते हो तो जाहिर बात है 75% भूलोगे, लेकिन 25% का भी वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है. नोट्स में अगर 75% भूलने लगे तो काम खराब हो जाएगा. नोट्स तो इसलिए होते हैं कि सीधे आखिर में जाके यूज करना. Once you have read the books, you will never touch the books again. Throughout your UPSC exam, you will only be using class notes. You will not be touching books. But initially, I will prefer that you go through some 2-3 books. पबाइड में किसी ने कुछ लिखा ही नहीं, पता ही नहीं है, तो लिखेंगे कहां से? नॉलेज ही नहीं है ना ज्यादा, वॉल्यूम नहीं है नॉलेज का, तो ज्यादा नहीं है यहाँ पर. हमें कहते हैं मोहित भट्टाचार्य पढ़ लीजिए, न्यू हॉराइजन्स. एक राजस्थान में फाडिया बोलते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय फाडिया. दिल्ली में जो पुराने लोग थे वो शर्मा सदाना बोलते थे, आजकल रुमकी बासु बोल देते. कोई भी एक किताब ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, go through it. Okay, just find it out and go through it. Anyone, and one is administrative thinkers. That's all. Names, हाँ लिख लीजिए, लिखिए. 4 बुक्स के नाम मैं लिखा देता हूं जो यूजफुल रहेंगी आपके लिए. 1, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थियरीज by Rumki Basu, RUMKI BASU. और इनमें और लेना,
तो टाइटल तो यही रहेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय BL फाडिया, B.L FADIA फाडिया, ठीक है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय शर्मा एंड सदाना, सदाना SADANA, सदाना। तीनों मत खरीद बैठना, ओनली वन, क्योंकि पैसा वेस्ट है। फिर भी मैं कह रहा हूं पढ़ लो इसलिए कि थोड़ा बुक ठीक रहती है टेबल पे रखी हुई, है ना, और एक जरूरी है। दूसरी फिर आप जो खरीदेंगे वो खरीदेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स, बाय प्रसाद एंड प्रसाद, PRASAD, प्रसाद और प्रसाद, 2 बार प्रसाद ले लो, प्रसाद प्रसाद, ठीक है। दिस इज वन। और इसमें भी एक और है, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स एंड मैनेजमेंट थॉट बाय सप्रू, SAPRU, सप्रू। तो अभी तक कुल मिला के 2 किताबें हुई, है ना, समझें तो 2 बुक्स। तीसरी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बाय अरोड़ा एंड गोयल, बाय अरोड़ा एंड गोयल, बस। इसके अलावा वो सब हमारा काम है कि प्लानिंग कमीशन जो अब नीति आयोग है उसकी कोई हो, क्योंकि वो सब पढ़ना है। राज्यसभा टीवी भी देखना चाहिए, ओके, यू शुड एक्चुअली व्हाट इट योजना, कुरुक्षेत्र, that you should go through, ARC reports, but that will already be in your notes, don't worry. इसके अलावा जो आपको देखना चाहिए अलग से अपने पास, वो योजना मैगजीन, वो आप जाहिर बात है उसके लिए भी देखोगे, GS के लिए। कुरुक्षेत्र, योजना, एंड नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, राज्यसभा टीवी डिबेट्स, ठीक है। बाकी जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होंगे वो आई विल इंक्लूड देम, ये सब नोट्स में रहेगा। ये नेचर है, दिस इज व्हाट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? जी नहीं, क्यों होगा इसमें? पॉलिटी पढ़ने से इसका तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ दोबारा पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी वो अलग है, वो आप GS की हो तो आप एकेडमी से बात कीजिए, दे विल टेल यू, ओके। पॉलिटी इज अलग, डिफरेंट थिंग, वी आर टॉकिंग ऑफ सब्जेक्ट। पॉलिटी से बेटा जिन बच्चों ने पढ़ा है उन्हें सिर्फ ये मालूम पड़ा है कि टीचर को पढ़ाना आता है, ओके, दैट इज व्हाट आई विल टेल देम ऑनेस्टली, और कुछ नहीं। आपको भी पीछे बाद में पता चला होगा बाकी बच्चों से, सबने तारीफ कर दी, थैंक यू सो मच। बट कोई बात नहीं, रिग्रेट मत करो। इसका तो सिर्फ ये है कि हाँ, वी कैन डिलीवर। दिस इज व्हाट आई विल सजेस्ट यू इफ यू आस्क मी कि सर आप बताओ ऑनेस्टली ऑप्शनल कौन सा लेना चाहिए। तो इफ somebody who is my son or daughter is going for it, I will say go for PABAC. Why? The benefits are very clear. सब्जेक्ट तो सारे ही पढ़ने पड़ेंगे, इसमें बराबरी के लेवल पे आ जाओगे। कंपटीशन में कोई ऐसा नहीं होगा जो तुमसे पहले ही बहुत आगे है। So whatever has been your past will not affect. But yes, if you are a topper of some Indian university in your subject, I will say go with your own subject only. ठीक है, आप डॉक्टर हैं, MD भी कर चुके हैं, प्लीज टेक मेडिसिन, मेडिकल साइंस, डोंट टेक दिस सब्जेक्ट। बट हाँ, आप कहते हैं जी MBBS ऐसे ही हुई है तो पवेट ले लो, क्योंकि फिर मैं समझ गया, फिर वहां परेशान हो जाओगे। तो
MBBS ऐसे हुई है या इंजीनियरिंग जो भी किया वो ऐसे है मामला, तो फिर ले लो सब्जेक्ट, बिकॉज यहां आपसे कोई आगे नहीं है, सब बराबर पे हैं। एनीवन हु इज स्टार्टिंग इज एट पार। ओके, बुक्स भी नहीं है ऐसी कि बहुत बेस्ट बुक्स हैं। मैं निकोलस हेनरी यूज करता हूं। अगर आप मुझसे पूछे सर आप कौन सी बुक यूज करोगे पढ़ाने में, आई विल बी यूजिंग मोस्टली अमेरिकन मटेरियल, क्योंकि वहीं की यूनिवर्सिटीज में ये पढ़ाया गया है और यूपीएससी पूछती भी वहीं से क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन मैं अगर आपको निकोलस हेनरी की किताब दे दूंगा अभी तो आप घबरा जाओगे। ओके, तो आप वास्तव में डर जाओगे कि ये क्या चीज है। तो हम आपको कह ही नहीं रहे हैं कि आप एटलस देखो कनिंगम का एनाटॉमी में, हम कहते हैं यार आसान से चौरसिया की बीएल चौरसिया खरीदना, उससे पढ़ेंगे। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग इट। पेपर की डिफिकल्टी इजी है अगर समझ में आया हुआ हो तो, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मुश्किल बन नहीं सकते, सिलेबस लिमिटेड है ना। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहां क्वेश्चन सरप्राइज कर देगा, बिल्कुल नया आ जाएगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है आप कोई सब्जेक्ट पूरा पढ़ लो। तो यूपीएससी कैन ऑलवेज सरप्राइज। इन दिस सब्जेक्ट आपको जो सरप्राइज आप डालोगे एग्जामिनर को, वो सिर्फ एग्जाम्पल्स का है और कुछ नहीं हो सकता। दैट इज द ओनली थिंग that you can create in terms of surprise, and that is of examples that you will be pushing towards. Fine? Okay friends, तो बिना क्लास के ही इतना लंबा क्लास ले लिया, बच्चे परेशान हो गएंगे यार, ये तो क्लास में कितना परेशान करेगा ये टीचर, 2 घंटे तो इंट्रोडक्शन में। हाँ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन स्टूडेंट दोज हु आर, राधा शर्मा आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो गई हैं, एंथुजियास्टिक। सर प्लीज डिक्टेट 1 क्वेश्चन ऑफ पबैट। कौन सा क्वेश्चन करना चाहते हैं, एरिया बताइए, कुछ पढ़ा हुआ है तो राधा आपने, तो मैं आपको बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन। राधा क्विकली टाइप, सर आई डोंट नो द एरिया, ओ माय चाइल्ड। ओके ओके बेटा, फिर मत क्वेश्चन पे जाओ, है ना, फिर मत जाओ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस का नेचर फिर भी आपने पूछा है तो मैं बता देता हूं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। डू यू थिंक Weber's model of bureaucracy is still relevant even though it has faced lot of criticism? Full stop. Discuss in the light of suitable illustrations. दोबारा बोल देता हूं, do you think Weberian model, WEBERIAN, Weberian model of bureaucracy is still relevant even though it faced lot of criticism in its own times? Okay, discuss in the light of suitable illustrations. ये क्वेश्चन बन गया जो आपको एटलीस्ट समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा, अच्छा गवर्नेंस नहीं पढ़ाई ना मैंने अभी आपको, हाँ तो ब्यूरोक्रेसी, फिर तो ये क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा। बीका जी कामा प्लेस में शायद मैं गवर्नेंस पढ़ा चुका हूँ, हाँ थोड़ा समझ में आएगा ये क्वेश्चन। तो गवर्नेंस का ये है ना कि भाई क्या वेबर का मॉडल राधा इज बेस्ड ऑन रूल बेस्ड ब्यूरोक्रेसी। तो क्वेश्चन अगर बताऊं आसान शब्दों में क्या बना, डू यू थिंक रूल ओरिएंटेड ब्यूरोक्रेसी इज स्टिल वैलिड though it has faced lot of criticism? Full stop. Discuss in the light of suitable illustrations. अब तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो, फाइन फ्रेंड्स, सो आई विल टेक योर लीव, गॉड ब्लेस यू। बेटा आपको कुछ पूछना है, आप बाद में आए हो, एनीथिंग? सब समझ में आ गया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद भी क्लास के बाद भी मिल सकते हो अभी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।